last 3 months the market is falling, and 90, I will say even 100% of the investors, they are having the stocks in their portfolio, and most of the stocks are trading below their average buying price. So they are not able to buy any further quantity, and they are in a dilemma ki what should do, what should be done, whether they should sell or whether they do trading or what should be done, or they should keep the quiet. So all these issues are coming, and we don't know ki how long it will continue. So somebody is predicting the market may fall further 20%. Somebody say ki FIs don't know how long they will continue to sell. So all those issues are coming, and everybody is getting confused. So that was the basic premise ki I thought ki let's have a discussion ki how to come over from this situation. So in the process, what has happened ki we have forgotten all our basics of our covered call and cash equivalent put. We used to do around 1 year and 1.5 years back, and we all have forgotten all those things. We started doing all this algo trading and all those things, and then the basics we have forgotten. So this is basically the two, I will say ki to again consider or again review all those slides, and then take a real decision ki what is to be done in future. With that premise, I'm starting this presentation. So always make money through pyramid buying and the covered call. If we follow this principle, I am giving you an assurance that you will never lose the money. If we follow the principle and if you follow the discipline, that is what we have to see. And then I will also discuss about in one slide. I have a very small presentation, 7 or 8 slides only. In one slide, I will also cover the dangers in option selling. Now, we all know about the Warren Buffett. Now, Warren Buffett started his career in the share market at the age of around 15, 16, and he had a net worth of 20,000 USD dollar at the age of 21, which became 1 million by the age of 30. And right now, he's around 92, 93. At the age of 90, his net worth was 103 billion. So lesson was that the big money is made over the long term. Let the compounding do its thing. So it is not only the earning consistently, but the compounding made the difference. How the Warren Buffett was able to make the money? Number one, he was earning consistently, and number two, the compounding made the difference over a period of 70 or 80 years. Let's we will analyze, or we'll use this analogy in our discussion. So covered option strategies for financial freedom. The topic is basically the covered option strategies for financial freedom. So what is financial freedom? So financial freedom, if you earn more than your pre-retirement salary or your current salary, or having enough money to make the choices that you always wanted to make, then I will say it's a financial freedom. What I want to say is, suppose your salary at the time of retirement, say, was 2 lakh rupees. And if you are able to earn more than 2 lakh rupees per month now, or if you are working and then you are able to earn more than what you are currently earning through your employment, then I will say you are in a state of financial freedom, so that you have enough money to make the choices that you always wanted to make. Suppose you invest rupees 10 lakhs today, assuming you have a 10 lakhs today, and you want to invest the 10 lakhs somewhere. Now, how much your investment will grow in 10 years? If your saving interest rate is 3% per annum, how much money it will grow in a period of 10 years? If your saving bank of interest rate is 3%, which currently is, your SBI is giving around 2.7, then your HDFC Bank, they are giving around 3%. Some started offering now 4% also. But suppose the 3% is the average bank interest, then you will get 13.5 lakh after 10 years. If you invest 10 lakh rupees in your saving bank, so many of employees I have seen, they are just keeping their money in the saving bank, and it is growing at the rate of 3%. So after 10 years, they will get 13.5 lakhs. Now, if you put that money at 10 lakhs rupees in your fixed deposit, and assuming the 6% is your post-tax return, actually it is not post-tax return. Currently, right now, we are getting around 6%. That is the pre-tax return. Assuming it is 6% as the post-tax return, then you will get 18.2 lakhs after a period of 10 years. Correct? If you are investing 10 lakh and you are getting post-tax return of 6%, you will get 18.2 lakhs after a period of 10 years.
Now, if you are able to generate return of 2% per month, if you are able to generate return of 2% per month, now can you tell me how much your investment will grow in 10 years? Can anybody make an assumption or make a guess? How much your investment will grow in 10 years? Any guess? 80 lakhs. How much? 80. करोड़ों में होगी सर, करोड़ों में। 80 lakhs. 80 lakhs. हाँ वेलिया जी कितना बोल रहे हैं आप? 80 lakhs. 80. Any other guess? Any other guess? सर 1 करोड़ से कम नहीं होगी, 1-1.5 करोड़ आराम से होगी। 2 CR से 1.25 करोड़। Okay, let's see. It will be 1.1 crore. If you do the exponential, this calculation of 1.02 exponentially by the 120 months, then it will be your 10 lakhs will become 1.1 crore. Now, how much it will become in 20 years? 20 years में कितना होगा बताइए? Suppose in 10 years become 1.1 crore. In 20 years, how much it will be? 15 करोड़। Any other guess? $11 crore. Okay. Yes, it will be 11.6 crore in 20 years. Now 30 years is interesting. How much your investment will grow in 30 years? 10 times of it. Any other guess? 20 crore or 40 crore? 1,200 crores. Arey my baba. It will be 125 crore. It's almost 10 times. 11.6 crore to 125 crore if you are earning 2% return per month. Now, wealthiest investor in the world, who was that? Who is Mr. Warren Buffett? His CAGR over a period of 75 years is 21% or 1.75% per month. He is earning 1.75% per month, by which he has accumulated $1.3 billion as on today, or maybe around 2 years back. His CAGR was 1.75. Now, Sensex CAGR, if you invested in Sensex in 1980, and if you compare by 2020, it has grown by 16.2%. Now, for last 1 year, the Sensex has again fallen from 55,000 to around 60,000 to around now 53, 54. I have taken the 2020 as the figure. So it has grown by 16.2%, which is 1.35% per month, even if you would have invested in the Sensex equity. So our mission is 2% monthly return for financial freedom. Can we get 2% monthly return for financial freedom? That is our target. And that is our mission, you can say. If we can achieve 2% monthly return, then we can even target that we will be even wealthier than the Warren Buffett. So the whole presentation is on this thing, can I earn 2% monthly return on my investment? That is what we'll see. Is it possible or not? And number two, can I get the return every month? That is the major issue. Okay. 1 month you may get 2%, another month you get minus 2%. So it become 0%. The issue is can you earn 2% consistently? Now, before that, we will understand what is the call option concept. I've explained this slide around 1 year back a number of times. Again, I'm explaining the same slide. What is a call option? Basically, who have not attended my earlier webinar, for them, they must understand what is the call option actually, how it works. So I am going by an example. Suppose a builder offers to sell a flat worth rupees 75 lakhs on 1st January in rupees 1 crore on 31st March, irrespective of price, if you pay rupees 2 lakhs as non-refundable total money. भाटिया जी सुनिएगा कि बिल्डर के पास जो अपना फ्लैट है वो 75 लाख का फ्लैट है, वो 1 जनवरी को 1 करोड़ में बेचने का ऑफर उसने डाला हुआ है और ये बोलता है कि 31 मार्च को आप मेरा डिलीवरी ले लेना, कुछ भी उस दिन का प्राइस हो, चाहे उस दिन 1.5 करोड़ का प्राइस हो जाए, 2 करोड़ का प्राइस हो जाए, आई विल सेल दैट फ्लैट इन 1 करोड़. कंडीशन ये है कि यू हैव टू पे मी 2 लाख रुपीज एज नॉट रिफंडेबल टोकन मनी. सो दिस इज द सिनेरियो. इज इट क्लियर टू एवरीबडी? बिल्डर ने अपना फ्लैट ऑफर किया है जो उसको 75 लाख में पड़ा हुआ है, उसको मार्केट को पता नहीं है कि उसका क्या कॉस्टिंग है,
बट वो बोल रहा है कि आई एम विलिंग टू सेल अ फ्लैट ऑन 1st जनवरी, कि दैट फ्लैट विल बी अवेलेबल टू यू ऑन 31st मार्च. उस दिन चाहे कुछ भी प्राइस हो जाए मार्केट में, आई विल सेल द फ्लैट इन 1 करोड़. ओनली कंडीशन इज कि 1 जनवरी को यू हैव टू पे मी 2 लाख रुपीज एज द नॉन रिफंडेबल टोकन मनी. नाउ व्हाट इज, एज एन इन्वेस्टर, what is your thought process? Your thought process is कि I have to invest only 2 lakh rupees. That means I am putting only 2 lakh rupees as the bet. I have to take this flat my own use. I will arrange the money in 3 months and I'll walk out if the flat prices crash. Suppose the market crash due to any reason, due to inflation or maybe any reason or maybe recession or whatever happen. If the similar type of flats are available, say in 75 lakh in the market, or 80 lakh in the market, I will run away. Yeah, I will walk out. I will not take the delivery. So my bet is only 2 lakh rupees. This is your thought process. Now, what is the builder thought process? Now, builder thought process is the prices are stagnant. Prices are maybe falling also because of the recession or because of the inflation or whatever may be the reason. And he is also assuming that my flat cost is 75 lakh rupees. And he has observed that 25% of the person who booked the flat, they don't take the delivery. So he is taking is a high possibility of free money. Those who are booking the flat in 2 lakh rupees, they are not taking the delivery. So it becomes a free money for him. And if he is able to sell, he is getting a huge profit of 25 lakh rupees because the flat was costing 75 lakh rupees and he is selling a 1 crore. So this is the builder thought process and that is your thought process. Now I have certain questions from you. On 31st March, can builder force you to buy the flat? No. Is No. everybody agreeing on this? Can builder force you to buy the flat? You have paid 2 lakh rupees as the non-refundable token money. And then he has agreed to give the flat to you in 1 crore on 31st March. On 31st March, can builder force you to buy the flat? No. No. So everybody is agreeing? Yes, no. Builder cannot force you to buy the flat. No. Now, can builder refuse to sell the flat? No. 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 Because you have paid the money, you have given the token amount. और जो बयाना बोलते हैं हम लोग जो ये नॉर्थ में है, एक बार बयाना दे दिया तो उसको फ्लैट आपको देना ही पड़ेगा. So he cannot refuse to flat the flat. Now, can you refuse to buy the flat? Yes. Yes. Because you can always walk away. Because when you have booked that money, you have paid the 2 lakh rupees, then you have to forgo that 2 lakh rupees, but you can refuse to buy the flat. Yes. Now, can you force builder to sell the flat? Yes. Yes. Everybody agreeing on this? Or any other thought? Yes. No. Huh? Because you have paid the money, 2 lakh rupees, so you can force the builder to sell the flat. Or you can go to the, you can take the legal course or all those things possible, but you can force the builder to sell the flat. So yes. Now, who has a right to buy and who is obliged to sell here? Who The has a buyer right? has the right. The buyer has the right. The seller is Seller has obliged. the sell. That means that you have the right to buy and the builder is obliged to sell. Okay. Now, what is your maximum loss and what is your maximum profit? Maximum loss 2 lakhs to the extent of the premium. Profit can be unlimited. Is everybody agreeing on this thing? Or any other thought? Agreed. Agreed. Your maximum loss is 2 lakh rupees. What can happen if you walk away from the deal, and your maximum profit can be anything because the whatever the price may be, maybe 2 crore or 1.5 crore, nobody knows. So your maximum profit is unlimited. So you have a 2 lakh rupees as the maximum loss and you have unlimited as the maximum profit. Now, what is the builder maximum loss and builder maximum profit? Builder maximum loss in theory is unlimited. Builder maximum profit is 2 lakhs. Is everything everybody agreeing to this thing? Yes, sir. Correct. Yes. No. No. How can somebody else explain how the builder maximum loss will be unlimited? No. Not unlimited. It's only 25 lakhs because his worth it is only 1 crore. No, suppose the building grows to 3 crores, then he is losing that much money.
So theoretically unlimited, but yes, practically that will be. Practically may be different, but theoretically he can incur unlimited loss if the price of the flat becomes suddenly 10 crore. Suddenly some project is announced or something happen, and then the building or the flat become 10 crore. So he can have unlimited loss, and maximum profit he can earn is only whatever the amount he is getting as a token money. So unlimited is the maximum loss. Maximum profit is 2 lakh, assuming the flat remain with him. Now here, who is a gambler and who is a smart player? Who is a gambler here and who is a smart player here? The builder is a smart player, and the one who is Builder is the gambler. Builder is the gambler, and buyer is the player, smart player. Can you explain how? Can you explain how the builder is gambler or builder is a smart player? The person buying the option is a gambler because he's saying right now do not consider about the option. Right now you consider here right now this situation here, who is the gambler right now? The buyer is the gambler. Yeah, that is, I mean, builder is not the gambler. Builder is smart. The buyer is gambling on how much the price will move, whether it will move too high. So that's the gamble the buyer is taking. By the builder knows the market very well. He has been selling the flats for years there, or he is making the flats and selling the flat there. He knows how the market is going to move it. His flat is costing 75 lakh rupees and he is offering it 1 crore. So if his flat is sold, he made a 25 lakh rupees profit. If flat is not sold, then he made a profit of 2 lakh rupees. So he is the winner in both the cases. So he is a smart player. And gambler is who? Gambler is basically the V, or maybe the retail investor, or maybe the person who is willing to buy the flat. He is gambling it. He is putting 2 lakh rupees in bet, thinking that the price of the flat will be more than 1 crore that particular day. If the price of the flat fall to say 90 lakh rupees, that means he is losing. So he is a gambler. And smart player is your builder. So gambler you and the builder is the smart player. So the call option is a right to buy, but not an obligation to buy underlying. Here the call option, what is the call option here? Here the 2 lakh rupees money which was paid by you or by the retail investor, that is the premium he has paid, and by paying that premium he has bought an option. So he has a right to buy, but he is not an obligation to buy underlying, but he is not obliged to buy that particular thing. That means if he want, he can walk away. So call option is giving a investor right to buy a share or maybe any option when whatever underlying is there, he has a right to buy. So the call option gives the buyer right to buy the share at the strike price on the expiration day. So suppose you are buying BPCL share. Okay, I will buy BPCL at the rate of 300 rupees, and then you are paying a premium of 10 rupees. That means on the expiry, you have a right to buy the share at 300 rupees, whether the price goes 350 or price goes 250. You have a right to buy at 300. Now, if the price goes to 250, you can refuse it. But if the price goes up, you can take the delivery at 300 rupees. And call option seller has obligation to sell if the share is assigned. That means if the price has fallen, so that means obviously you will assign your right. So he has to sell. So this was the whole concept of the call option. Now on this call option concept, now we'll build how we can money every month. So that if you have understood, then that should solve your major problem what you are facing today. So for that, I thought I will explain you through a call concept, through this concept of builder concept, how the call option is working. So we are going to discuss about the covered call strategy. And on this, please try to understand each and every line. And wherever you have a doubt, you please ask me. Because this one slide I'm telling you, if you strictly follow it, you will make the money every month. Number one, the strategy. The strategy is selling a call on a stock you own to collect the rent, that is the premium every month, or sell the stock at higher target price.
That means you have a two target. Number one, either I will get the rental income, or I will sell the stock at the higher target price. Simple, nothing more. Only दो condition है, या तो रेंट आएगा मेरे को, और या जो है मेरा जो स्टॉक है वो मेरे को हायर जो मेरा टारगेट प्राइस पे उस पे मेरा बिक जाना चाहिए. ओके, नाउ सपोज HPCL CMP इज से ₹225, मतलब आज का जो रेट है वो HPCL का वो ₹225 है, और HPCL lot size is 2,700. So how much investment you need? You will need an investment of 225 into 2,700. That is 6,07,500. That is the investment you need if you buy 2,700 of HPCL at the rate of 225. Now your target is to sell HPCL at 250 with 25 rupees profit. Now that 25 rupees profit will turn around into 67,500 profit, or rupees 10 rental, that is your 27,000 as a rental income. So your target is कि या तो मेरे को 27,000 रुपए किराया आ जाए, या मेरे को 67,500 का मेरे को प्रॉफिट हो जाए. दोनों में से मेरा एक कंडीशन मीट होना चाहिए. ये मेरा टारगेट है. ये जो कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी है वो ये बोल रही है कि या तो मैं आपको किराया दूंगा और या मैं आपको प्रॉफिट दूंगा, दोनों में से एक सिनेरियो में करके आपको दूंगा. तो ये अगर हम स्ट्रेटेजी अगर फॉलो कर रहे हैं तो वी हैव टू सी कैन वी मीट अवर दैट 2% टारगेट, जो 2% मंथली वाला टारगेट था, कैन वी मीट द टारगेट और नॉट. वी आर फोकसिंग ऑन दैट वन विद दिस कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी. So what I will do, I will sell OTM. That means कि जो 225 का जो रेट चल रहा है तो उसके आगे का जो है 230 या 240 का, तो अज्यूमिंग के मैंने 240 का कॉल बेच रहा हूं मैं, तो सेल 240 कॉल ऑप्शन strike price, the call of 240 is the strike price in ₹10 call premium, assuming that I am getting a ₹10 premium. Now it may be ₹5, it may be ₹12. I have just taken assume that your call premium is ₹10. So there will be any of the four scenarios on expiry at the month end. आपने देखो फिर से क्या बता रहा हूं मैं, 225 का रेट था, उसमें आपने 2,700 शेयर खरीदे हैं, आपने 240 का कॉल बेचा है ₹10 के अंदर. अभी चार सिनेरियो इसमें हो सकते हैं भाई, या तो आपका वो प्राइस जो है वो 240 के ऊपर जाएगा, या 240 के नीचे रहेगा, या 240 के बहुत ऊपर चला जाएगा, या 240 के बहुत नीचे चला जाएगा. ये चार सिनेरियो हो सकते हैं, और कोई सिनेरियो इसका हो नहीं सकता. या 240 रह जाए, यानी कि 240 के प्राइस ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया. ये चार सिनेरियो, इससे ज्यादा कोई पांचवा सिनेरियो आपका होगा नहीं है. तो ये चारों सिनेरियो को हम लोग डिस्कस करेंगे. सिनेरियो नंबर 1, जिनको भी ये कॉल कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी का नहीं है, इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा. सिनेरियो नंबर 1 में क्या होगा कि एक्सपायरी प्राइस अगर 240 से नीचे रह गई, यानी कि 250-40 का आपने कॉल बेचा है और प्राइस रह गई 220 पे, आपका वो क्लोज हुआ है, तो आपका जो कॉल बेचा है उसमें आपको जो ₹10 प्रीमियम था वो आपका प्रॉफिट हो गया, यानी कि आपको 27,000 का प्रॉफिट उसके अंदर हो गया. शेयर्स आर रिटेन्ड, रेंट रिसीव्ड एंड रिपीट द साइकिल नेक्स्ट मंथ. आपका परसेंटेज गेन कितना हुआ? 4.4% पर मंथ, विच इज अराउंड 60% पर ईयर आपको आपका प्रॉफिट हो रहा है. आप बोलोगे कैसा हुआ? आपने जो 6,07,500 का इन्वेस्टमेंट किया था, उस पर आपको 27,000 का आपको रेंटल इनकम मिला है, तो वो रेंटल इनकम के हिसाब से आपको 4.4% का मंथली आपको गेन हुआ है, which is much more than what is my monthly target of 2%. That is scenario number 1. प्राइस नीचे रह गया, अभी प्राइस ऊपर चला गया, प्राइस has gone above 240 से 260 चला गया या 280 चला गया, assuming ये प्राइस 260 चला गया, तो 260 चला गया तो आपका लॉस इन कॉल होगा आपको ₹10. कैसे होगा? 240 का आपने कॉल बेचा था, 260 आपका रेट हो गया है और ₹10 आपको प्रीमियम मिला था, यानी कि आपका नेट लॉस हुआ है कॉल के अंदर ₹10 का. लेकिन आपको शेयर्स में फायदा हो गया कितना? 260 माइनस 225, दैट इज ₹35. तो 35 इंटू 35 माइनस 10 करके ₹25 का जो आपका ओरिजिनल जो प्रॉफिट टारगेट था वो आपका मीट हो गया, और आपको प्रॉफिट हो गया 67,500. तो परसेंटेज गेन कितना हुआ आपको? 11.1%. अब मुझे बताइए इससे और अच्छी चीज आपके लिए क्या हो सकती है कि प्राइस नीचे गिरेगा तो 4.4% का फायदा हुआ है, प्राइस ऊपर चला गया तो 11.1% का एक महीने के अंदर फायदा हुआ है. और आपको इससे अलावा क्या चाहिए? हमको और कुछ नहीं चाहिए. नीचे जाए तो फायदा, ऊपर जाए तो फायदा, लेकिन हम ये सब भूल गए हैं आजकल.
आज जो और है बहुत ही कम लोग बहुत जो है weak कवर्ड है। कॉल पे काम कर रहे हैं। अभी इसमें सिनेरियो नंबर 3 और देख लेते हैं। इफ द एचपीसी फॉल्स मोर देन ₹10 फ्रॉम 225, जो 225 रुपए का जो आपका जो बाई प्राइस था और 10 रुपए का आपको रेंटल इनकम आ गया है, उससे भी अगर प्राइस अगर नीचे गिर गया है तो यू विल इनकर ए नॉशनल लॉस। आपको नॉशनल लॉस नजर आ जाएगा यार मेरा, जो अभी आजकल लोगों के साथ हो रहा है कि आपने जो शेयर खरीदा उस शेयर को उससे खरीदने से भी वो काफी नीचे चल रहा है, तो यू आर इनकरिंग ए नेशनल लॉस। बट यू विल रिटेन योर शेयर्स, योर मंथली रेंट हैज बीन रिसीव्ड एंड यू कैन रिपीट द साइकिल एवरी मंथ। हर महीने आप अपना साइकिल को रिपीट करते जाओ, हर महीने आपको रेंटल आता रहेगा। आपका जो एवरेज बाई प्राइस है वो डेफिनेटली आपका जो प्राइस है वो आपका ऊपर उससे आना ही आना है, गारंटेड आपको प्रॉफिट मिलना ही मिलना है। अगर आप रिलीजियसली अगर आप उसका हर महीने 2 या 3 ओटीएम कॉल बेचते रहोगे तो। और अगर कभी मान लो प्राइस ऊपर चला गया तो डिलीवरी दे देंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें भी आपको फायदा होने वाला है। तो दिस वाज द सिनेरियो नंबर 3। और सिनेरियो नंबर 4 जो है कि प्राइस बहुत बढ़ गया, यानी इफ द एचपीसी प्राइस इंक्रीज मोर देन ₹250 से वो 300 चला गया, तो certainly you will miss the rally, but your gain will be 67,500, which is a ROI of 11.1%। यानी 11% का तो आपको ROI मिलना ही मिलना है, चाहे प्राइस 300 हो जाए या 400 हो जाए, हो जाने दो ना, हमको क्या फर्क पड़ता है। मेरा एक महीने का टारगेट 11% का था, वो मेरा हो गया और मुझे क्या चाहिए। यानी कि मेरे को या तो 4.4% का मेरे को रेंटल इनकम आ रहा है, या मेरे को जो है 11.1% का जो है मेरे को प्रॉफिट आ रहा था। तो जितने जो मेरे जो अपने मेंबर्स थे, उन मेंबर्स के मैंने कुछ लोगों ने अपने मेरे को पोर्टफोलियो शेयर किए, और उन पोर्टफोलियो में मैंने क्या देखा कि लोगों के 100 to 120 तक शेयर्स हैं, बट वो 100 to 120 जो स्क्रिप्ट्स हैं, किसी की 5, किसी की 20, किसी की 50, कोई भी लॉट साइज में नहीं था। तो मैंने उन लोगों को सबको ये एडवाइस किया कि तो पहले तो आप इसको रीस्ट्रक्चर करो। रीस्ट्रक्चर करने के बाद में कहने का मतलब था कि हर सेगमेंट में आप एक शेयर रखिए। जैसे अगर ऑयल एंड गैस है तो ऑयल एंड गैस में आपको एचपीसी भी है, बीपीसी भी है, रिलायंस भी है, आपके पास में ओएनजीसी भी है। तो व्हाट आई डिस्कस कि जो भी शेयर आपको पसंद हो उस शेयर को रखो, बाकी के सारे शेयर बेच के उस एक कंपनी का शेयर खरीद लो एंड कंप्लीट योर लॉट साइज। बिकॉज कवर्ड कॉल आप तभी कर पाएंगे जब आपके शेयर्स आपके लॉट साइज में, अगर लॉट साइज में नहीं है तो देन यू कैन नॉट डू योर कवर्ड कॉल। तो ये करके जो है लोगों का जो 125 या 100 शेयर के जो पोर्टफोलियो थे, वो मैंने उनको बोला कि आप 8 या 10 पे लेके आ जाओ, और फिर आप जो है टारगेट करो कि मुझे हर महीने में 1.5 या 2 लाख रुपए मेरे को कमाना है। और ऐसे करके आप प्लान करोगे तो यू विल एबल टू मेक द मनी, यू विल हैव अ मच मोर पीसफुल लाइफ। और ये रोज रोज का जो टेंशन है ट्रेडिंग का, ये वो नहीं होने वाला है। सो दिस वाज योर सिनेरियो नंबर 4। इसमें जो मैक्स प्रॉफिट होता है दैट इज योर कॉल स्ट्राइक प्राइस माइनस सीएमपी प्लस प्रीमियम रिसीव्ड। जो ब्रेक इवन आपका होता है वो होता है सीएमपी माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। ये सब फार्मूला है, यू डोंट वरी अबाउट दिस फार्मूला। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया क्या? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन दिस, बिकॉज दिस इज द स्ट्रेटेजी विल मेक योर मनी नॉट ओनली इन इंडिया, ग्लोबली एवरीबडी इज मेकिंग मनी थ्रू कवर्ड कॉल स्ट्रेटेजी। मैं अभी यूएस में देख रहा हूँ कि यहाँ तो क्या है कि यहाँ तो इवन आपके जितने ईटीएफ होते हैं उसमें भी इनके जो है कवर्ड कॉल चलता है इनके यहाँ। जैसे कि हमारे वहाँ पे निफ्टी है, ये निफ्टी 20 लेते हैं, या अगर हम लोग अगर जैसे वो निफ्टी 50 का कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं तो हमारे को वहाँ पे ऑप्शंस नहीं अलाउड है। बट यहाँ पे यूएस के अंदर ऑल ईटीएफ के अंदर दे हैव द ऑप्शंस, एंड ऑल रिटायर्ड फेलोज दे आर ओनली सेलिंग द कवर्ड कॉल एंड दे आर मेकिंग द मनी। क्योंकि इनको यहाँ पे जो आपका एफडी का रेट उनका काफी कम है, 1.5% 2% के आसपास रहता है। So they try to make around 7 to 8% through their covered call strategy. Annually उनको बोलते हैं 12% भी हमको मिल गया, they are very happy. So I don't know why we have forgotten this covered call totally. But इसमें एक ही चीज है, when we are selling the option, we have to sell the option strike price of 240 or 250 only, na. Below that if you sell, then again it will be a problem. वो तो अगर आपका एक्विजिशन प्राइस 225 है तो लालच मत करो ज्यादा, आप 230 का मत बेचो या 225 का मत बेचो। आप कम से कम 242, अरे कम आएगा, कम रेंटल आएगा चलेगा, लेकिन मेरे को रेंटल तो हर महीने आएगा ना। नंबर 1। और अगर सिनेरियो नंबर 2 हो गया, सिनेरियो नंबर 2 हो गया तब तो मेरा ह्यूज प्रॉफिट आ जाएगा। आप जितना ओटीएम ज्यादा रखोगे तो आपका सिनेरियो नंबर 2 आने पे जबरदस्त प्रॉफिट आने वाला है, और रेंटल थोड़ा कम आएगा तो ठीक है ना। कुछ तो रेंटल आ रहा है ना, एटलीस्ट ऐसा तो नहीं है कि मैं चुपचाप भी बैठा हुआ हूं मैं। अगर आपका जैसे रिलायंस का एग्जांपल है, रिलायंस अगर आपने 2600 में आपका खरीदा हुआ है और मान लीजिए रेट 2400 चल रहा है,
तो हाँ। जरूरी नहीं है 2500 का बेचो, आप 2650 का कॉल बेचो, थोड़ा थोड़ा Yes. प्रीमियम कम आएगा, ठीक है, कम आने दो, Yes. क्या फर्क पड़ता है उसमें। करेक्ट। सो अगर आप रिलीजियसली ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे, मैं बता रहा हूं कि आपका कोई भी पोर्टफोलियो हो, यू विल मेक द मनी। कोई ट्रेडिंग नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, सिंपल ये करते रहो आप, यू विल मेक द मनी। एनी अदर डाउट? यस सर, सिनेरियो 2 जो है, हाँ सिनेरियो 2 में हमें डिलीवरी तो 240 पर देनी है, 240 का हमने कॉल बेचा हुआ है, बराबर। फिर ये आपका जो इसमें net डिलीवरी निकल gain जाएगा, जो आपका इसमें हाँ जी। डिलीवरी चला जाएगा, आपको 11.1% का आ गया, और वो डिलीवरी जाने के बाद में फिर हम कैश इक्विट पुट चालू करेंगे, वो मैं आज नहीं बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो उसका नहीं, ये एक आपका ऑप्शन 11% बिल का का गेन स्ट्रेटेजी समझ चलता है। में 11% वाला गेन समझ में नहीं आया, जब डिलीवरी 240 पे चला ही गया, हाँ, तो 11% का गेन कैसे आया? अरे भाई आपका शेयर तो 260 हो गया था ना। हो गया था, लेकिन मुझे बेचना तो 240 में ही है ना सर। हाँ, तो 260 तो आपका उसको डिफरेंस आपको आपको मिलेगा ना, आपका शेयर एक्चुअली तो आपने 260 पे बेचा ना उसको। भाई आपने 240 का कॉल बेचा है, ठीक है, जी 240 का जो कॉल बेचा, जब उसका रेट 260 हो जाएगा, जो कॉल का जो प्राइस है, वो कॉल का प्राइस आपको इतना बढ़ जाएगा कि आपको 35 रुपीज का वहां बेनिफिट मिलने वाला है। एक्चुअली आप क्या करोगे कि 240 पे आप डिलीवरी लेके उसको दे दोगे, 260 पे आप डिलीवरी जो है मार्केट पे छोड़ दोगे आप, तो आपको जो बेनिफिट है 35 रुपीज का आएगा उसके अंदर। आपका कॉल का प्राइस बढ़ जाएगा, जो आपका कॉल आपने 10 रुपए का जो लिया था ना, जो 10 जी। रुपए का आपने कॉल जो लिया था, वो उस कॉल का प्राइस जो है आपका 25 रुपीज बढ़ के वो 35 रुपीज हो जाएगा। तो ये ठीक है सर। एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बोला है कि आपको गेन में शेयर्स में गेन हो रहा है, एक्चुअली आपको कॉल में बेनिफिट हो रहा होगा, कॉल में आपको 35 रुपीज का बेनिफिट मिलने वाला है। कॉल तो बेचा नहीं, मैंने दे रहा नहीं है ना। कॉल आपने 10 रुपए का जो बेचा हुआ है, जो कॉल जो 10 रुपए का जो बेचा हुआ है, वो आपका हो जाएगा, उसका आपका भाव बढ़ जाएगा, तो कॉल में आपको लॉस होने वाला है, और आपका शेयर का जो डिलीवरी आपको 260 में आप डिलीवरी बेचोगे, तो वहां आपको 20 वहां आपको फायदा होगा ना। आप क्या करोगे, अभी आपका मंथ सर एंड मैं हुआ, वही कहना चाह रहा हूँ कि 10 रुपए का जो कॉल था वो 30 या 40 रुपए का हो जाएगा उस टाइम। 30 रुपए का नहीं नहीं नहीं, उसमें आपका वो कॉल 30 रुपए, आपका कॉल 35 रुपए का हो जाएगा उसमें, क्योंकि आपका सर शेयर का रेट बढ़ गया है, ठीक है। इफ आई मे क्लैरिफाई सर, उनका जो सवाल है, तो उसमें एक्चुअली अपने बेचेंगे जो अपनी होल्डिंग है, वो जो 260 पे जाएगी, नॉट द कॉल। तो वो 260 पे जब आपका भाव आ गया है, तो आप कैश में जो आपकी होल्डिंग है वो बेच सकते हो, तो आपका प्रॉफिट तो जो दिखाया हाँ, तो होल्डिंग बेचेंगे तो प्रॉफिट आएगा, कि कॉल को तो मुझे रिकवर करना पड़ेगा ना, फिर या तो बाय करना पड़ेगा कॉल को, भी तो सर बढ़ा रहेगा। तो प्रीमियम बढ़ जाएगा बहुत ज्यादा उस टाइम। मेरा ये कहना है। आप ये कैलकुलेशन करके देखो, आपको एग्जैक्टली ये वाला प्रॉफिट आने वाला है, क्योंकि ठीक है। आपने शेयर 225 पे लिया, देखो आप सुनिए फिर साहब, आपने शेयर 225 पे लिया था, ठीक है, जी जी और जी अभी रेट जी। 260 हो गया, राइट सर। बराबर है, तो आपको शेयर में कितना फायदा हुआ आपको? 35 रुपए का। 35 रुपए का फायदा हो गया शेयर के अंदर, बराबर है, बस। ठीक है ना। अभी जो आपका कॉल जो था 240 रुपए की कॉल आपने 10 रुपए में बेची थी, जी अब 240 वाली कॉल 260 रुपए हो गई, जी तो आपको कॉल में कितना लॉस हुआ? 20 रुपए का। जी। कॉल में 20 रुपए का लॉस हुआ ना, कि 240 वाली कॉल आपको 260 में स्क्वायर करनी पड़ रही है, और 10 रुपए आपको पहले से मिला हुआ है, तो नेट लॉस आपका 10 रुपए हुआ ना। ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। ओके। पहले जरा सा आपका जो शेयर जो था, Mute शेयर जो कीजिए 225 वाला जो था, वो आपने 260 में शेयर बेच दिया, ठीक है, जी। तो आपको शेयर में 35 रुपए का फायदा हो गया। और कॉल जो 240 वाली जो कॉल आपने 10 रुपए में बेची थी, वो 240 की कॉल आपकी 260 रुपए में आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी, तो आपको कॉल में 20 रुपए का लॉस हुआ ना, 260 माइनस 240 यानी 20 रुपीज का लॉस हुआ, बराबर है। 20 रुपए का लॉस है। 20 रुपए का लॉस हुआ, 10 रुपए आपको पहले मिल चुका है, तो नेट लॉस आपका 10 रुपए हुआ, ओके। ठीक है ना। तो जी। जो आपका जो नेट गेन हुआ वो 35 माइनस 10 यानी कि 25 रुपीज का हुआ, और वही आपका टारगेट था, तो 67,500 का आपको प्रॉफिट हो गया, ऐसे करके 11.1% आया। ओके सर। ये आवाज आ रहा है, 1 मिनट मेरे को लोगों को म्यूट करने दो एक बार। मिस्टर वल्लभ Mr. Vailaya. Mr. Vailaya has to mute. Mr. Vailaya को निकालिए सर। या हाँ, so any other question on this?
सर एक चीज बताइए, जो हमने मान लो कॉल हमने सेल करी थी, तो जो हाँ। उसका बाई है 260 की कॉल को बाई करना पड़ेगा, या उसी की वही सेम को ही हमें स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, उसी 240 वाली को स्क्वायर करना पड़ेगा। 240 वाली जो कॉल को ही आपको स्क्वायर करना है। 240 260 वाली कॉल थोड़ी है आपके पास, आपने 240 की कॉल बेची है ना। अच्छा तो 240 वाली जो कॉल है वो उस समय आपको 10 रुपए का उसमें लॉस होगा, क्योंकि वो 20 रुपए में आपको स्क्वायर करनी पड़ेगी। अच्छा क्योंकि जो है आपका एक्सपायरी पे दोनों का प्राइस सेम हो जाता है, शेयर का प्राइस और उसका जो कॉल का जो ऑप्शन का प्राइस है वो दोनों मिला के सेम हो जाना चाहिए। तो जब शेयर का प्राइस ओके। 260 है तो कॉल का भी 260 माना जाएगा, तो उसमें आपको 20 रुपए का लॉस होगा। तो इसका मतलब हमें कुछ करना नहीं है, एक्सपायरी पे वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा वो ना अपने पैसे? आप ही कर देगा, वो अपने आप ही कर देगा, क्योंकि आपको आपका जो है करना ही- फिजिकल सेटलमेंट होगा ये, तो आपके अकाउंट में शेयर होने चाहिए, और आपके ओके अकाउंट में शेयर है ही है, जो आपने शेयर खरीदे हुए हैं। तो ऑटोमेटिकली जो ओके है आपका ब्रोकर जो है आपका वो आपको डिलीवरी वो असाइन कर देगा और आपके वहां से अकाउंट से वो शेयर ले लेगा। और उस केस में ओके। जीरोधा और वाले केस में 0.25% का ब्रोकरेज आपका एक्स्ट्रा लगेगा, और फिनविशा में वो 0.25% एक्स्ट्रा नहीं लगता है, ये थोड़ा ख्याल रखना। ओके, दूसरी चीज है कि आपने ओटीएम बोला है, अगर हम आईटीएम लेंगे उसमें ये चीज तो आईटीएम के चक्कर में मत जाओ, उसके अंदर कितनी बार वो मामला उल्टा पड़ जाता है। अपने को ओटीएम का ही बेचना है, अपने को रेंटल इनकम पे अपने को ज्यादा फोकस रखना है। आईटीएम में क्या है कि आपका डिलीवरी हो सकता है पहले महीने में निकल जाए आपका, फिर दूसरे महीने में आपको फिर आपको शेयरिंग नहीं रहेंगे ना आपके। अभी सिनेरियो नंबर 2 में क्या हुआ है कि आपकी डिलीवरी आपसे छूट गई है, क्योंकि आपको डिलीवरी देना पड़ा है, तभी आपको 11% का प्रॉफिट आया। तो इससे अभी अब नेक्स्ट महीने में आप क्या करोगे, तो नेक्स्ट महीने में आपको कैश इक्विटी पुट करना पड़ेगा, या आपको शेयर फिर से खरीदने पड़ेंगे, और हो सकता है शेयर और ऊपर जाता जाए। तो अपना टारगेट है रेंटल इनकम लेना। अपने वो नहीं कहते कि वो मतलब मूल से इंटरेस्ट ज्यादा प्यारा होता है, अपने जो मारवाड़ी में जो लोगों को बोलते हैं, तो वो यहाँ पे वही है कि मेरे को रेंटल इनकम से ज्यादा प्यार है रादर देन कि मैं अपना असेट ही बेच दूं। तो सिनेरियो नंबर 2 में आपका असेट आपके हाथ से निकल गया है। सिनेरियो नंबर 1 में आपको रेंटल हर महीने आ रहा है, तो अवर टारगेट इज टू अर्न द रेंटल एवरी मंथ। तो आपको बैलेंस ऐसा रखना है कि वो आपका वो आईटीएम कभी हो ही नहीं। मतलब कि जैसे अपन ने यहाँ से 10% से ज्यादा का, अगर जैसे 225 का रेट था और 240 का कॉल बेचा है, तो अप्रोक्सीमेटली 8 से 10% का ज्यादा रखा है। तो एक महीने के अंदर एचपीसीएल 10% नहीं बढ़ना चाहिए। तो अभी जैसे आप रिलायंस है, तो रिलायंस का अगर 2600 चला तो 2800 का कॉल बेचो आप, तो इनवेरेबली वो रिलायंस एक महीने में 10% नहीं बढ़ने वाला है। या एचडीएफसी बैंक है, हो सकता है कभी एकदम से आ जाए, बात अलग है, पर इनवेरेबली ये शेयर आपके 8-10% से ज्यादा एक महीने में बढ़ते नहीं है। तो उसमें आपको हर महीने आपका रेंटल इनकम आता रहेगा। अपना टारगेट रेंटल इनकम कमाने का है। और ऐसे अगर आपने पोर्टफोलियो बना दिया 5 शेयर का, जैसे आपने एक आईटीसी का ले लिया, एक आपने एचडीएफसी हो गया, एक इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गए, इसके हर महीने के एक एक लॉट बेचते रहो, आराम से आपको महीने का 1.5-2 लाख रुपए आता रहेगा आपको। 5 स्क्रिप्ट चूज कर लो आपके जो आपके लार्ज कैप वाले हैं, और उनकी बस बेचते रहो, कुछ नहीं करना अपने को, बढ़िया से पैसा आएगा आपको। सर ये मार्केट जितना एग्जाम्पल में जैसे सॉरी सर, ये एग्जाम्पल में जैसे अपने समझो आपने जैसे समझाया कि पोर्टफोलियो में अगर आपके कैश में हो तो ये अच्छा आइडिया है, और अगर यही हम फ्यूचर में एक लॉट लेके करें तो कैसा रहेगा? भाई वो करने में वो सब कर सकते हो, वो हम लोग सब वो करते ही एफ&ओ में वो सब करते ही हैं, लेकिन उसमें क्या फंस जाते हैं कभी कभी। वो मार्केट कभी ऐसा गिर जाता है, ऊपर चल जाता है ना, कि आदमी उल्टा सीधा डिसीजन ले लेता है कि एक फ्यूचर में प्रॉफिट बहुत आने लग गया। वो उसमें कर सकते हो, लॉजिक इज सेम, प्रिंसिपल इज सेम। बट अपने को अभी जो मेजर इश्यू जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि मेरे पोर्टफोलियो में इतने शेयर पड़े, मैं उनका क्या करूं मैं। अभी मैं एक लॉट और खरीद लूं और पता चले वो गिर जाए, तो वो एक और मेरे गले की घंटी बन जाएगी। पहले ऑलरेडी मेरे गले में इतनी सारी घंटियां लटक रही है है नहीं है। तो मेरे को पहले उनको सुलझाना है। एक बार मार्केट जो ऊपर चला जाएगा, जब मेरा इक्विटी मेरी लिक्विडेट हो जाएगी और मेरे अकाउंट में अच्छा खासा पैसा आ गया, तो तब उसके बारे में सोचेंगे। बट मैंने क्या देखा कि मतलब इनवेरिएबली जितने भी रिटायर्ड लोग हैं ना, वो ये स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं और वो सब पैसा बना रहे हैं, और हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। और हम लोग पता नहीं क्या क्या मतलब दुनिया भर के काम कर रहे हैं, और फिर बाद में बोलते हैं यार मेरा तो मतलब पोर्टफोलियो लॉस में चल रहा है, मेरे को ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। सो इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी, वेरी इजी टू मॉनिटर। महीने में सिर्फ आपको 1 या 2 ट्रेड करना है। जैसे ही आपका महीना स्टार्ट हो, उसके एक वीक पहले आप अगले महीने का कॉल भेज दो, अच्छा प्रीमियम आपको मिल जाएगा, और शांति से 1 महीने बैठे रहो, कुछ करने का जरूरत नहीं है। महीने के एंड में जाके देख लो आपको क्या करना है। इनवेरिएबली आपका जो है ऑप्शन 0 हो जाएगा। वो अगर जैसे आपका प्राइस अगर वो आईटीएम नहीं हो रहा है,
यानी कि वो 240 के नीचे रह रहा है, तो वो आपका वो जो 10 रुपए वाली कॉल है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगी, या तो स्क्वायर कर दो, नहीं तो उसको मतलब जीरो होके उसको मतलब बर्थलेस एक्सपायर होने दो आप। नॉर्मली मैं जो है 4-5 दिन पहले उसको स्क्वायर करके मैं फिर आगे महीने की कॉल भेज देता हूँ मैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या करना चाहते हो। What's this strike price? You are saying roughly about 10%. 8 to 10% ले लो आप, 8 to 10% Okay. ले लो तो Now, ठीक है। suppose instead of that, suppose we take ATR and keep that as the अरे यार बाबा, strike उसमें price. प्रॉब्लम जैसे मैंने क्या बताया, आईटीएम में और एटीएम में प्रॉब्लम ये है कि आपका डिलीवरी निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अभी जैसे ये वाला एग्जांपल बताता हूँ, ये वाला एग्जांपल है एचपीसी का है। एचपीसी का अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 210 रुपए चल रहा है, ठीक है, और आपकी एक्विजिशन प्राइस थी 225। अभी आपने 210 की कॉल आपने बेची, मान लीजिए 15 रुपए के अंदर भी, तो पता चलेगा कि आपको अगर रेट जैसे ही बढ़ेगा तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, तो आपका तो माल आपके हाथ से छूट गया ना। तो व्हाट आई विल प्रिफर कि इफ माय एक्विजिशन प्राइस इज 225 and right now the price is 200 or 210, I will sell at least 230 call. So अगर मान लो रेट चला गया तो I will make profit at least in my original acquisition price also. In case of ATM and ITM, there is a high probability that you will lose your delivery. You will get a good premium. There is no doubt about it. Your rental income will be very high, but there is a very high possibility of you losing your asset. आपका asset आपके हाथ से निकल जाएगा, वो एक बहुत बड़ा issue है ITM और ATM के अंदर. So if you are comfortable with that one, you can do it. Then you will get higher rental. So that balance you have to maintain, and that balance or that trade-off you have to see कि भाई मुझे कितना प्रीमियम लेना है, मेरे को पहले माल निकालना है, तो that all depends on you. The concept is this one. Okay. और कोई doubt any? Kothari ji, Yeah. I want to share something. बोलिए. If you recollect, in September 2019, in our WhatsApp group, you had started this strategy, if you recollect. Yeah. And since 2019, I am following this strategy religiously. Hats off to you. And hats off to you. I am just following this covered call strategy and nothing else. Fantastic. And in my view, ITC is the best share. In shares which move sideways, this strategy works very well. Yeah. Right. In fact, I have made profit on both sides. Take for example, ITC. Say today the price is 270. I sell 300 call and I also sell 240 put. Acha. You are doing covered strangle. Yeah. Very good. Beautiful. How much money you are able to make every month? How much money you are able to make, Thoratji? Around 15,000. In one lot. In one lot. Not much, as you know. Yeah. So in one lot you are able to make 15,000 per month. Yeah, I am really grateful to you. I am following this strategy. I have not deviated from this strategy at all since 2019. And I myself have deviated. That's a great thing. I myself have deviated from this to so many other strategies. I've forgotten about this thing. Since then we have seen so many things. Yeah. This strategy. But this strategy maybe it is very suitable for stock like ITC. Correct, no? For any stock it will work, yeah. Any stock it will work. Whether it ITC, whether it is HDFC or BPCL, anything it will work. Only thing you have to decide your strike price suitably. सर ये जैसे सर ने बताया कि 15,000 per month, how much money he has to put for earning 15,000? Just for knowledge purpose I am asking, sir. नहीं, उनका एक लॉट ITC का होगा ना, तो एक लॉट ITC का देख लिए, उनका एवरेज प्राइस 250 है, 250 into 3,000 यानी 4,50,000. I purchased ITC when it was 207. Okay. A lot of 3,500, so my initial investment was only 6 lakh. अच्छा. And I told the premium of the next month, not the correct month, so that I get a good premium. So it is around 2% per month आ रहा है sir, more than 2%. Then I started selling puts as well, so my rental income not increased. I muted everybody again. So please unmute and then start. So sir is earning at least 2%, 2.5%, right sir? On 6 lakhs rupees. So 15,000 उतना ही आता है, correct?
Right, month. right. Right, sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you. Acha, apart from ITC, you said, sir, HDFC Bank and BPCL. किसी So, में भी like, कर लो है ना? आप, किसी में भी कर लो, आपको ये पैसा आएगा ही आएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। एक सेकंड, वापस से शेयर स्क्रीन करने दो मेरे को। Yeah. Okay. So no more question. I can go further now. I have 2-3 more slides. Yeah. Okay. So now the pyramid buying, जो अभी एक हमारा जो अभी एक फिर से जो बहुत बड़ा इशू चल रहा है कि मार्केट कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। मैं क्या करूं? मुझे कवर्ड कॉल भी करना है लेकिन मार्केट गिरता ही जा रहा है। तो इसके लिए जो है कि अगर इफ वी डू द पिरामिड बाइंग, दैट मीन्स कि हमारा जो वो एल्गो था, चाहे आप एल्गो यूज करो चाहे आप एल्गो नहीं भी यूज करो, इशू ये है कि आपको एक क्वांटिटी फिक्स करना है कि भाई मेरे को 100 शेयर एवरी 5 रुपीज या एवरी 10 रुपीज में मुझे बाई करना है। दैट इज योर पिरामिड बाइंग। जो नॉर्मली पिरामिडिंग बाइंग होता है, जो प्राइस ऊपर जाता है तो लोग बोलते हैं मैं पिरामिड बाइंग करूंगा। You can have a averaging pyramid buying lower side also. You can have a average pyramid buying upside also. दोनों ही काम में आपको कवर्ड कॉल में फायदा होने वाला है। यानी कि अगर आप शेयर ऊपर जा रहा है और आप अगर पिरामिडिंग बाई करते जा रहे हो तब भी कवर्ड कॉल बहुत अच्छे से काम करेगा, और अगर वो शेयर गिरते जा रहा है पिरामिडिंग बाइंग कर रहे हो तब भी आपका कवर्ड कॉल आपको बहुत अच्छे से काम करने वाला है। बट इसमें डिसिप्लिन आपको एक मेंटेन करना है कि आपको ऑफसेट आपको सेम रखना है और क्वांटिटी आपको उतनी ही हर उतने प्राइस गिरने या पड़ने पे आपको लेना है। ये नहीं है कि आपने जो है एकदम से 200 शेयर खरीद लिए, फिर आपने कुछ नहीं किया और फिर आप जो है वेट कर रहे हो कि यार प्राइस तो और ज्यादा गिर गया, मैं क्या करूं। अगर प्राइस गिर रहा है तो हर 10 रुपए पे अगर मुझे 100 शेयर खरीदने तो हर 100 रुपए पे मैं खरीदूंगा। तो उसके लिए ये जो हमारा एल्गो वाला सेटअप है वो बढ़िया से काम करता है। एक बार मैंने जो है एल्गो में रेट डाल दिया कि भाई मेरे को जो है जैसे मान लीजिए बीपीसीएल के 250 शेयर या बीपीसीएल के 100 शेयर हर 4 रुपए गिरने पे मुझे खरीदना है, तो ये आराम से उसको आपको खरीदता रहेगा। तो इसमें क्या है कि टू बाय शेयर्स एट अट्रैक्टिव प्राइसिंग एज द मार्केट और स्टॉक इज फॉलिंग, आई फिक्स माय प्राइसिंग, आई फिक्स माय सेटअप, नाउ इट विल गो ऑन बाइंग द स्टॉक व्हेनेवर द प्राइस इज फॉलिंग। There will not be any square off trade and you will be buying shares for every fall by set off till maximum quantity reach। इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने सेल क्वांटिटी 0 रखा है, देख लो आप। दैट मीन्स कि सिर्फ बाई करेगा ये, मेरे को वो स्क्वायर ऑफ नहीं चाहिए, क्योंकि अभी जब प्राइस इतना गिरा हुआ है, मान लीजिए जैसे अभी बीपीसीएल 300 रुपीज पे चला हुआ है, नाउ आई डोंट वांट टू सेल एट 305 अगेन और 310 अगेन। मेरे को तो बाई करना है क्योंकि मुझे अल्टीमेट मेरा टारगेट कवर्ड कॉल का है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैंने सेल क्वांटिटी मैंने 0 कर दिया और मैं स्टार्ट किया मान लीजिए 320 से, और अभी प्राइस 300 आ गया, नो प्रॉब्लम, लेट द प्राइस फॉल फर्दर बाय 10 रुपीज और लेट द प्राइस फॉल बाय अनदर 20 रुपीज, नो इशू। I will buy my 100 quantity at least till I have reached to a 50% of the quantity। अगर जैसे बीपीसीएल का 1800 का लॉट है और अगर मेरा 900 भी मेरा क्वांटिटी अगर मेरा पूरा हो गया तो आई कैन सेल द कवर्ड कॉल, ऑल्दो थोड़ा रिस्की होता है लेकिन उसको अपन दूसरा स्ट्रेटेजी से कवर कर सकते हैं। तो दैट्स द पिरामिड बाइंग। दैट मीन्स कि मेरे को जैसे जैसे मेरा शेयर गिर रहा है मैं छोटा क्वांटिटी लेता जा रहा हूँ, और टारगेट मेरा मैंने शुरू में डिसाइड कर लिया है कि मेरे को 5 शेयर में काम करना है, कि मेरे को एचडीएफसी में, रिलायंस में, टीसीएस में और मेरे को इन्हीं में काम करना है। तो उन्हीं का मैं जो है जैसे जैसे शेयर गिरेगा मैं बाई करता जाऊंगा। अगर मान लो मार्केट घूम गया तो या तो मुझे शेयर में फायदा हो जाएगा, नहीं तो मैं कवर्ड कॉल कर दूंगा, मुझे दोनों में फायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा तो इम्पॉसिबल है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि टीसीएस का शेयर या रिलायंस का शेयर 50% गिर जाए या 25% भी गिर जाए। मैंने अभी पिछले 10 साल में ये देखा नहीं है कि रिलायंस का शेयर एक साल में 25% गिर गया हो या टीसीएस का इतना गिर गया हो। हाँ, 5-10-15% गिर जाता है, वो वापस ऊपर जा जाता है। एंड सिंस वी आर डीलिंग इन द मेजर शेयर सो देयर विल नॉट बी एनी इशू। हाँ, लेकिन अब ये गोदरेज प्रॉपर्टी है या आईडीएफसी पर इनका कोई भरोसा नहीं है, ये आपके जो 30 रुपए भी आ सकते हैं, 60 रुपए भी जा सकते हैं। बट कवर्ड कॉल जो है बेसिकली सुटेबल है जो बड़े शेयर है उसके अंदर, और अपने बड़े शेयर में हमको काम करना है, तो हमको अकुमुलेट करना है, और अकुमुलेट करने में हमको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। या तो मैनुअल डिसिप्लिन रखिए और या आप एल्गो से कर सकते हो इफ यू वांट टू डू थ्रू एल्गो। तो यू कैन यूज हियर डिजायर्ड प्राइस और एनएसए बिड आस्क और एलटीपी एज द स्टार्ट प्राइस। ये हमारा उसका जो है। नाउ इसमें देयर आर 2 मॉडल्स वर अवेलेबल, वन इज द एल्गो ट्रेडर, वन इज द एल्गो इन्वेस्टर। इन केस ऑफ एल्गो ट्रेडर योर कैपिटल विल बी ब्लॉक्ड इमीडिएटली। यानी कि एल्गो ट्रेडर में क्या होता है, जैसे ही ऑर्डर आपका जाता है आपका उतना पैसा ब्लॉक हो जाता है। और एल्गो ट्रेड इन्वेस्टर के अंदर क्या है कि जब वो रेट आएगा तभी आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो आपका कैपिटल ब्लॉक नहीं होगा और आपका जो शेयर है वो भी आपका ब्लॉक नहीं होगा।
तो यू कैन यूज एनी ऑफ दिस मॉडल, लाइक कैन यूज एल्गो ट्रेडर और एल्गो इन्वेस्टर, जो भी आपको पसंद है दैट यू कैन यूज इट। बट एल्गो इन्वेस्टर के अंदर आपके ऑर्डर विल नेवर बी रिजेक्टेड इवन इफ यू आर पुटिंग योर शेयर्स आउटसाइड द लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट रेट। जैसे कि अभी मान लीजिए बीपीसीएल 300 रुपए ट्रेड चल रहा है और आपने 250 पे बाय करना चाहते हो आप, तो 250 का रेट अगर आप डालोगे एल्गो इन्वेस्टर में या एज ए नॉर्मल ऑर्डर डालोगे तो आपका ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन एल्गो इन्वेस्टर में आप 250 का रेट डालोगे तो जब भी 250 का रेट आएगा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपका ऑर्डर रिजेक्ट नहीं होगा। सो दैट डिपेंड्स ऑन यू व्हिच मॉडल यू वांट टू यूज इट। सर ये एवरी मंथ डालना होता है, सॉरी एल्गो इन्वेस्टर में, कि एक बार रेट डाल के छोड़ सकते हैं? एक बार डाल दिया एल्गो इन्वेस्टर में, एक बार डाल दिया और क्लाउड में डाला हुआ है, बस वो आपका परमानेंटली आपका 2 साल तक 5 साल तक वो आपका ऑर्डर चलता रहेगा उसके अंदर। ब्यूटीफुल, थैंक यू। और दूसरा सिस्टम ये है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ कि यू कीप सेल क्वांटिटी इज 50%, तो थोड़ा थोड़ा आपको उसमें भी प्रॉफिट आता रहेगा और आपका क्वांटिटी अकुमुलेट होता जाएगा, क्योंकि मार्केट अभी गिर रहा है। इन सभी बियर फेज है, तो मैंने क्या किया कि बाय क्वांटिटी 250 रखा है तो सेल क्वांटिटी मैंने 125 कर दिया, तो यानी कि क्वांटिटी बिकता कम है और आता जाता है, एंड दैट इज व्हाट आई वांट, बिकॉज आई वांट टू अकुमुलेट टू अ लॉट साइज। जैसे ही मेरा टीसीएस का लॉट साइज पूरा हो जाएगा फिर मैं जो है मेरा कवर्ड कॉल चालू कर दूंगा मैं, या मेरा एटलीस्ट 50 to 75% क्वांटिटी हो गया मैं कवर्ड कॉल चालू कर दूंगा। तो यू कैन हैव योर डिफरेंट सेटअप, जैसे भी आपको अपना सेटअप यूज करना है दैट यू कैन डू इट एंड देन यू कैन यूज इट। बट डिसिप्लिन से काम करोगे। I could not understand. But last line can you explain? लास्ट लाइन का मतलब ये है कि सपोज अभी जो मैंने ऊपर जो टेबल बताया है दैट टेबल में आई केप्ट द सेल क्वांटिटी एज 0, ठीक है? ओके, करेक्ट। दैट मींस कि आई ओनली वांट टू बाय, आई डोंट वांट टू सेल एट ऑल, ठीक है? बट व्हाट आई एम प्रेफरिंग माई सेल्फ, आई एम टेलिंग यू अबाउट मी, व्हाट आई हैव डन इट, आई हैव केप्ट द बाय क्वांटिटी एंड सेल क्वांटिटी इज 50% ऑफ द बाय क्वांटिटी। दैट मींस कि बीपी सेल में आई विल बाय 250 बट आई विल सेल ओनली 125। That means कि slowly I will keep on accumulating my quantities, because I find that right now the 300 rupees is a very attractive price for BPCL. Correct. So that is the reason I'm keeping the sell quantity at 125. So that means कि for every 4 rupees rise, I will sell 125 quantity. But when the buy will happen, I will buy 250. So slowly I will accumulate my quantity, because my ultimate target is to go for a covered call. So like that you can make your strategy. Okay, clear? Yeah. Now this was about the your covered call. Now this is my last slide, the dangers in option selling, and this is the major issue, the why the public is deviating and then they are not doing it. So I thought let me explain those also, okay, what are the danger. Number 1, put should never be sold for earning rental income. Please remember it. And at least I am telling you 50% of member, they have lost mainly because they started using the put for earning the rental income. ये बोलते रहे कि डिक्शनरी में आप लिख लीजिए कि मेरे को पुट तो बेचना ही नहीं है रेंटल इनकम के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे पुट नहीं बेचना है रेंटल इनकम कमाने के लिए। रेंटल इनकम मुझे कमाना है तो सिर्फ कवर्ड कॉल से कमाना है, पुट से नहीं कमाना है। दैट इज नंबर 1 कंडीशन। क्योंकि पुट जब आप बेचते हो ना, तो व्हेन यू आर सेलिंग द पुट, तो अगर मान लो जब शेयर गिरता है तो आपको डबल लॉस होता है। एक तो आपका शेयर गिर गया, प्लस आपको उसका डिलीवरी लेना पड़ेगा जो आपका काफी नीचे चला गया, उससे भी नीचे शेयर नीचे चला गया, तो आपको डबल लॉस हो रहा है। दैट इज द रीजन पुट शुड नेवर बी सोल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम। यस, यू कैन सेल द पुट, but put must be sold when you are 200% sure, not even 100%. You are 200% sure of taking the delivery at put price minus less premium received, irrespective of price fall. यानी कि जैसे कि आपने जैसे रिलायंस का आपने 2500 का रेट चल रहा है और 2400 का आपने पुट बेचा है, then you must be 100% sure कि मुझे डिलीवरी लेना ही लेना है, चाहे वो प्राइस 2000 हो जाए, चाहे प्राइस 1800 हो जाए, तब तो आप पुट बेचिएगा, नहीं तो पुट मत बेचना। अगर आपने पुट बेच दिया तो आपने जबरदस्त आपको प्रॉब्लम आ सकता है। मेरा तो सिंसियर एडवाइस है कि पुट को आप बेचना अपनी डिक्शनरी में से निकाल ही दो आप, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हाँ, आईटीसी में काम कर जाएगा ये, आईटीसी में इतना प्रॉब्लम नहीं, आईटीसी इतना ऊपर नीचे गिरता नहीं है, पर जो भी आपके वोलेटाइल स्क्रिप्ट है, चाहे वो बीपीसीएल हो, चाहे भारतीय हो, चाहे यूपीएल हो, चाहे आपका इवन एचडीएफसी बैंक हो, अभी तो एचडीएफसी बैंक भी इतना वोलेटाइल हो गया है, तो पुट अगर बेचा तो ये आपके गले की घंटी बन जाएगा। तो मेरे हिसाब से पुट नहीं बेचो आप। इनवेरिएबली
stock fall much more than put strike price in case of breakdown rally in stock. और वो आगे अपन देख रहे हैं, अभी अपन लास्ट 2-3 महीने से देख रहे हैं कि आप जो भी पुट स्ट्राइक का आप बेचोगे वो शेयर उससे नीचे चला जा रहा है, क्योंकि वो FIIs बेचते ही जा रहे हैं। वो UPL 800 वाला शेयर आपका 612 पे मिल रहा था 2 दिन पहले, वो फॉर्चुनेटली 2-3 दिन में वापस वो 640 के आसपास आया है, 45 के पास आया है। तो मतलब कोई भरोसा ही नहीं है। वो आपका इन्फोसिस देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। TCS 4500 का उसका आपका वो आने वाला था बाईबैक, और वो आपका 3100 पे मिलने लग गया था। और अगर आपने पुट बेचा हुआ है तो फिर आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्योंकि जब वो ब्रेकडाउन रियली आता है तो फिर वो पुट तो कहीं रह जाता है और वो शेयर उसके नीचे चला जाता है। तो सो आइडियली पुट शुड बी सोल्ड अगेंस्ट द इक्विटी सोल्ड। अगर आपको पुट बेचना ही है, भाई आप बोले नहीं मेरे को तो पुट बेचने में मेरे को अच्छा रेंटल आता है, आप पुट बेचो, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पुट आप तब बेचो जब आपने शेयर बेचे हैं। जैसे कि आपके पास मान लीजिए BPCL का लॉट है, आपने BPCL के अगर 1800 शेयर बेचे हैं 300 रुपए में, फिर आप 280 की पुट बेचो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कम से कम आपको ये तो रहेगा कि यार मेरे को 20 रुपए का फायदा वो हुआ और 10 रुपए का प्रीमियम मिला, तो 30 रुपए का फायदा हो गया। 30 × 1800 54,000 का फायदा हुआ है। लेकिन रेंटल इनकम के लिए पुट कभी मत बेचो। आपने इक्विटी बेचा है तब पुट बेचो, उसमें कोई इशू नहीं है। जैसे कि आपने कवर्ड कॉल किया और कवर्ड कॉल में आपका डिलीवरी छूट गया, तब आप पुट बेचो, एब्सोल्युटली नो इशू। लेकिन पुट अगर आपने सिर्फ रेंटल के लिए का बेचा है तो फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा है। देन नेक्स्ट आता है नेकेड कॉल शुड नॉट बी सोल्ड फॉर अर्निंग रेंटल इनकम। अगेन, कितने लोगों को इतना कॉन्फिडेंस हो जाता है कि अकाउंट में शेयर नहीं है, फिर भी वो जो कॉल बेच रहे हैं क्योंकि रेंटल इनकम लेना है। ये भी आपका बहुत बड़ा फंसने का सौदा है। तो कभी भी आपको नेकेड कॉल नहीं बेचनी है रेंटल इनकम के लिए। जब तक आपको डिलीवरी नहीं है, अंडरलाइंग आपके पास नहीं है, स्टॉक आपके पास नहीं है, आपको कॉल नहीं बेचना है। कॉल मस्ट बी सोल्ड व्हेन यू आर 200% श्योर ऑफ गिविंग द डिलीवरी। अच्छा, इसमें ये एक प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को रेंटल इनकम तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उनको ITM नहीं होना मांगता है। यानी कि वो क्या बोलेंगे साहब कि मेरे को हर महीने मेरे को रेंटल इनकम तो आता रहे, लेकिन अगर वो शेयर का 20% बढ़ गया तो मुझे डिलीवरी नहीं देना है। तो फिर आप ये काम मत करना कवर्ड कॉल का। कवर्ड कॉल का काम आपको तभी करना है जब आपको शेयर से प्यार नहीं है, शेयर से मोहब्बत नहीं है। यानी कि अगर वो शेयर आपके टारगेट से ऊपर बढ़ गया तो आपको डिलीवरी देना है, तब तो कवर्ड कॉल बेचना, नहीं तो कवर्ड कॉल मत करना। ये कवर्ड कॉल का रूल है। तो कॉल मस्ट बी सोल्ड व्हेन यू आर 200% श्योर ऑफ गिविंग द डिलीवरी एट कॉल स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम रिसीव। यानी कि अगर 2700 की कॉल बेची है आपने रिलायंस की और 50 रुपए का आपने प्रीमियम लिया है, तो यू मस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि 2750 के ऊपर चला जाएगा तो मैं डिलीवरी छोड़ दूंगा मैं। तब तो आप कॉल बेचे, नहीं तो मत बेचे, नहीं तो आपको लॉस होने वाला है, क्योंकि फिर आप कवर करोगे आप तो उसका कोई फायदा नहीं है। इनवेरिएबली ये भी देखा है कि स्टॉक राइज मच मोर देन कॉल स्ट्राइक इन केस ऑफ ब्रेकअप रैली इन स्टॉक। जब एकदम से शेयर भागता है तो वो कितना भागेगा किसको पता नहीं है। वो 10% भी भाग सकता है, 15 भी हो सकता है, 20 भी हो जाता है। तब आपकी कॉल कहीं रह जाएगी और माल आपका ऊपर चला जाएगा। तो दैट यू हैव टू बी केयरफुल। आइडियली कॉल शुड बी सोल्ड अगेंस्ट द इक्विटी बॉट। यानी कि जब आपने शेयर खरीद लिया है, आपको पता है मेरी एक्विजिशन प्राइस कितनी है, उसके बाद में आप कॉल सेल करोगे, आप शांति से रहोगे, अच्छे से रेंटल इनकम पाओगे और बढ़िया से अपना काम करोगे। इसमें गैम्बलिंग मत करो, कहने का मतलब है। पुट सेलिंग इज मच मोर पेनफुल देन कॉल सेलिंग when put or call becomes ITM. Can somebody explain this sentence? Put selling is much more painful than call selling when put or call becomes ITM. Can anybody explain this sentence? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? सर, आपका एग्जांपल जैसे आपने बोला कि अगर पुट बेच रहे हैं और फिर जब वो इन द मनी आ जाता है तो हम डबल लॉस में हो जाते हैं कि भाई एक तो प्रीमियम का भी गया और फिर उसका स्टॉक प्राइस भी गिरा है। तो मे बी दैट्स व्हाई आई थिंक पुट सेलिंग इज मच मोर पेनफुल। और कॉल में क्या होता है? बोलिए। Pradeep, I would like if you can explain put also. Call I can understand. नहीं, एक्चुअली मैं पुट का मैं आज एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। वो पुट का भी एक पूरा 2-3 स्लाइड्स है मेरी ही। और कॉल सेलिंग में अगर वही एनालॉजी अप्लाई करें कि आपने कॉल सेल कर दिया है और स्टॉक ऊपर जा रहा है, तो आपको फिर डिलीवरी तो देना होगा। No, I think call is pretty good and safe if you have a lot with you. तो पुट में आपको डबल लॉस हो जाता है। एक तो ऑलरेडी आपकी इक्विटी होल्डिंग है
और प्लस आपको एक और डिलीवरी लेनी पड़ रही है। कॉल में अगर बहुत ज्यादा भागता है तो इट्स ओनली एन अपॉर्चुनिटी लॉस, क्योंकि आपके ऑलरेडी लो कॉस्ट में शेयर खरीदा हुआ है एंड यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड टू गेट डिलीवरी एट दैट प्राइस, सो इट्स ओनली एन अपॉर्चुनिटी लॉस। Exactly. In case of call, at least you have a satisfaction of giving delivery at your target price or call strike price plus premium receive. यानी कि जब कॉल आपका ITM हो गया है, यानी कि जब मैंने जो HPCL का एग्जांपल लिया था, HPCL आपने 240 की कॉल बेची और 240 का रेट 300 हो गया, अरे आपका तो 67,000 में आपको मिल गया ना, तो आपको कम से कम वो सेटिस्फेक्शन है कि मेरा 67,000 का जो मेरा इनिशियल जो मेरा टारगेट था वो तो मेरे को मिल ही गया। पुट में ये नहीं है, पुट में तो अगर वो प्राइस 200 रुपए हो गया तो आपके पास ऑलरेडी शेयर है और एक आपको 200 रुपए का डिलीवरी आपको और लेना पड़ रहा है, तो दैट इज द रीजन पुट सेलिंग इज मच मोर पेनफुल। कॉल सेलिंग में कम से कम आपको ये तो सेटिस्फेक्शन है कि मेरा टारगेट प्राइस का मेरे को कितने में मैंने डिलीवरी दिया। और इनवेरिएबली मैं एक और बता दूं मैं आपको कि जब हम नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं ना, तो कभी भी हम इतना बड़ा टारगेट लेके नहीं चलते। हम क्या करेंगे, HPCL का हम 225 में खरीदेंगे, हम 230 में बेच के बाहर निकल जाएंगे। या अगर हमने HPCL का फ्यूचर अगर 225 में लिया है तो 3 रुपए में प्रॉफिट लेके निकल जाएंगे। लेकिन अगर कवर्ड कॉल करोगे आप, यू विल वेट टिल द मंथ एंड एंड यू विल मेक अ ह्यूज मनी। दैट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ द कवर्ड कॉल, क्योंकि आपका टारगेट बहुत बड़ा फिक्स कर दिया है और आपको वो टारगेट नजर आ रहा है। और जबकि फ्यूचर ट्रेडिंग में और जब इक्विटी ट्रेडिंग में करते हो तो बहुत छोटा प्रॉफिट करके बाहर निकल जाते हो। और ये कॉल सेलिंग का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आपको अपना टारगेट पता है। आपको ये पता है या तो मुझे रेंटल इनकम मिलेगा या मेरे को मेरा टारगेट वाली प्राइस मिलेगी, तो वो आपको कॉल सेलिंग में एडवांटेज मिल रहा है। और पुट सेलिंग के अंदर आपका पूरा रिवर्स हो जा रहा है। दैट इज द रीजन आई से। आप जरा म्यूट करेंगे, कोठारी जरा म्यूट कीजिए प्लीज, सबको म्यूट कीजिए सर। बिल्कुल सो कॉल सेलिंग के अंदर द मेजर एडवांटेज ये है कि नंबर 1, यू आर एटलीस्ट गिविंग योर डिलीवरी एट योर टारगेट प्राइस, सो यू आर गेटिंग योर 67,500। ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं मिला, 67,000 का तो प्रॉफिट आया ना आपको। और अगर आपने नॉर्मल में अगर आपने फ्यूचर में ट्रेडिंग किया होता या इक्विटी में ट्रेडिंग किया होता तो 5,000 का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाते हैं आप। कवर्ड कॉल के अंदर ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप एक महीना वेट करते हो और एक महीने के एंड में या तो आपको रेंटल इनकम आता है या आपको अपना प्रॉफिट टारगेट मिलता है, दोनों में से एक चीज मिलता है। और पुट वाले बेचने में आपको सबसे बड़ा इशू ये है कि एक डिलीवरी तो आपका ऑलरेडी पड़ा था और एक डिलीवरी आपको और मिल गया, वो और भाव और ज्यादा नीचे गिर गया। यानी कि जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसमें तो लॉस हो ही रहा है, जो आपने नया डिलीवरी लिया उसके भी नीचे आपका रेट चला गया तो डबल लॉस और उससे ज्यादा लॉस। जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम अपने ग्रुप में हो रहा है वो उनको हो रहा है जो पुट बेच रहे हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने अपने वॉच लिस्ट में जब पुट की रेट ही निकाल दी, मैंने कहा मेरे पुट को देखना ही नहीं है मेरे को। बहुत मतलब आई रियली आई हैव गॉन थ्रू दिस पेन। मैंने कहा कि मैं पुट को देखूंगा ही नहीं मैं। हाँ, 2-4 बार प्रॉफिट आता है, रेंटल आता है, लेकिन एक बार वो ऐसा फंसता है ना कि वो वास्तव में गले की घंटे बन जाती है। तो हाँ, देन सीजन्ड F&O प्लेयर्स जो होते हैं, अगर आप ऑपरेटर से बात करो कभी भी, या अगर आप कभी जो बड़े जो F&O के जो प्लेयर्स हैं वो कभी भी पुट नहीं बेचते, कभी भी वो पुट नहीं बेचते। दे ऑलवेज बाय द पुट्स टू हेज देयर पोर्टफोलियो एंड दे मेक द मनी थ्रू बाइंग द पुट, दे विल नेवर सेल द पुट। पुट तो हम जो रिटेल इन्वेस्टर ही जो है, जब से ये कवर्ड कॉल और ये जब कॉन्सेप्ट आए ना, हम लोग ये बेचना सीख गए और रेंटल इनकम कमा के और हमने सोचा इससे पैसा बना लें, बट इससे हम लोग फंसने लगे। और ये सब जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं सबको पता है कि रिटेल वालों को कैसे फंसाना है। अगर वो शेयर गिरेगा तो उसको गिराते ही जाएंगे। आप बिलीव नहीं करो, वो यूपीएल का पुट मैंने जो है 20 रुपए में बेचा था और वो मैंने 80 रुपए में जाके कवर करना पड़ा मेरे को। 20 रुपए का जो पुट मेरे बेचा था, 80 रुपए में मैंने उसको कवर किया, बट मैंने हैंड टू हैंड में उसकी डिलीवरी ले ली। मैंने क्या किया, पुट को मैंने स्क्वायर किया, 60 रुपए का लॉस किया, यानी 60 इंटू 1300 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट अराउंड 90,000 का मुझे लॉस हुआ। बट मैंने हैंड टू हैंड वो जो है 615 रुपए का रेट था, 615 पे मैंने डिलीवरी ले लिया और अभी मैं बैठा हुआ हूँ मैं इसको। बट कितने लोग डिलीवरी ले पाएंगे? तो उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि यार ये बहुत हो गया, ये पुट को तो अपना निकाल ही दो यहाँ से। एक तो शेयर जो आपके हाथ में थे उसका भी आपका वैल्यूएशन गिर गया और ऊपर से ये आपको डिलीवरी और लेना पड़ गया। देन seasoned F&O shares accumulate 50% equity holding and they start selling the covered call। तो अगर आपको F&O का पूरा अच्छा नॉलेज अगर हो गया तो यू कैन डू इट।
अदरवाइज आप 100% एकोमोडेट करने के बाद अगर आप कवर्ड कॉल कर रहे हो तब तो कोई प्रॉब्लम होने वाला ही नहीं है। बट जिनको थोड़ा सा अच्छा नॉलेज है या दो हु कैन हैंडल, दो हु कैन मेक द एडजस्टमेंट, दे कैन इवन आफ्टर accumulating 50% of the equity holding, they can start doing the covered call. Always trade only in large cap and stable stocks for option selling. कभी भी ये volatile script जैसे आपका इंडिया बुल हाउसिंग हो गया, आरबीएल बैंक है, बंधन बैंक है, इवन अभी तो आपका जैसे यूपीएल भी हो गया, इतने ज्यादा ये लोग जो है मतलब वोलेटाइल हो गए ना, जी टेली है, दे आर वेरी वेरी वोलेटाइल स्क्रिप्ट, इसमें ना करो, ज्यादा अच्छा है। ऑलवेज ट्रेड इन द लार्ज कैप, यू विल मेक द मनी। So this was all about my presentation on the covered call, covered put ka and short strangle ka. Maybe I will take in the maybe in the next webinar. So any question on this? Any doubt? My sincere request is you restructure your portfolio, shift your portfolio from 30 stock or 50 stock to 5 or 6 stock. Every month sell the covered call, you will make good money, and you will have a much more peaceful life, and that is much more important. What I think. I must say thank you very much for this presentation. It's been an eye opener. Thank you very much. Sir, can you do it? One more question, Pradeep. Yeah. Hello. Yeah. Let's say I have a strategy that I want to sell the call, but intention is I don't want to give the delivery. So let's say if I put my call sell at a price 52 weeks high price. So more or less, I'm going to get the rent, and I'll be on the safer side. Could that be a strategy one can look at? Means setting a price. You can look into it if you are selling too far OTM. If you are selling the call which is very very far OTM, then it's okay, because there is a very very less probability. Say for example, Reliance. If you are Reliance, you are selling 2,800 call. Now 2,800 Reliance has not reached during last 1 year. So the probability of Reliance reaching to 2,800 is very, very less. So you can sell easily. Approximately 15 to 20. In that case, your premium will be less. Premium will be very less. So if you put a more unrealistic price, you will earn a lesser premium. Yeah. So that is the trade-off you have to take. Okay. That is the trade-off. So depending on the share, you can decide if you want to give a delivery. Depending on the share, you can decide, and then you can make various adjustment. Yeah. 6, And 7, then 8% मेरा जो basis नॉर्मल जो प्रेजेंटेशन था, मैं ये बोलता था कि अगर आपने कवर्ड कॉल किया है, अगर वो 50% प्रॉफिट अगर वो एक वीक के अंदर आ जा रहा है, जैसे आपने 10 रुपए का कॉल बेचा और एक वीक के अंदर का प्राइस अगर 5 रुपए आ जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाओ। डोंट वेट टिल द मंथ एंड। मंथ एंड तक क्या हो जाएगा पता नहीं, अपना 5 रुपए 6 रुपए का 50% 60% प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट बुक करो, बाहर आ जाओ, थैंक यू वेरी मच बोल दो उसको, भैया बहुत हो गया मेरा, ये मैंने का काम। So you can have your own strategy. Yeah. So how do you come out from your covered call if you, let's say you are booked in the स्क्वायर करना है, that's all, उसको वापस खरीदना है ना। जो 10 रुपए की कॉल 5 रुपए की हो गई, तो 5 रुपए में उसको वापस खरीद लो, तो आपका 5 रुपए प्रॉफिट हो गया। अच्छा। जैसे आपने कॉल अगर वो 20 रुपए का बेचा है और वो कॉल अगर आपका 8 रुपए हो गया या 12 रुपए हो गया, आप उसको वापस खरीद लो, तो आपने स्क्वायर करके बाहर आ गए आप। तो इसमें क्या डिफरेंस हुआ? आपने 20 में खरीदा था, 20 में बेचा था, 20 में बेचा था और 8 में खरीदा आपने। भाई आपने कवर्ड कॉल किया ना, तो 20 में आपने कॉल बेची और 8 में आपने वापस खरीद ली, तो 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया ना सीधा सीधा। अच्छा। सो खरीदने का मतलब क्या हुआ? यू वांट टू बाय शेयर्स? खरीदने का मतलब क्या हुआ? यू हैव बॉट द कॉल बैक। यू बॉट द कॉल बैक, ओके। हाँ, जो 240 का आपने कॉल बेचा था एचपीसीएल वाले केस में, 240 का कॉल आपने 10 रुपए में बेचा था मान लीजिए, ठीक है। अभी वो एचपीसीएल का भाव 240 से 230 रुपए आ गया, तो क्या होगा कि जो कॉल का रेट गिरने लगेगा, क्योंकि आपका जो अंडरलाइन है वो गिर रही है, ठीक है ना। तो अंडरलाइन गिरता है तो वो कॉल का रेट भी गिरता है, तो जब वो 240 से 230 आ जाएगा, जो कि होना ही होना है महीने के अंदर, आपका वो एचपीसीएल कंटिन्यू ऊपर तो जाएगा नहीं, कभी नीचे भी जाएगा। तो जब वो नीचे जाने लगेगा तो कॉल का प्राइस भी गिरने लगता है, तो जो 10 रुपए वाला कॉल है वो 5 रुपए आ जाएगा, 6 रुपए आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाता है, आपका टारगेट मीट हो रहा है, आप उसका बुक करके बाहर निकल जाओ। एक्चुअली वो फ्यूचर वाले लोग बहुत करते हैं। फ्यूचर वाले में क्या करते हैं कि फ्यूचर बाई करते हैं और कॉल बेचते हैं। वो उसमें एक स्ट्रेटेजी है, वो मैंने काफी डिस्कस किया, बट दैट आई डोंट नॉट डिस्कस टुडे बिकॉज़ दोज आर वेरी रिस्की स्ट्रेटेजीज। तो ये जो आज का जो स्ट्रेटेजी था, बेसिकली उनके लिए था जो कि कंजर्वेटिव टाइप इन्वेस्टर हैं या जो माल लेके फंसे हुए हैं, जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं, उनके लिए था। अदरवाइज देयर आर लॉट मेनी वेरिएशंस आर देयर। फ्यूचर से कर लो आप,
वो अपन नहीं डिस्कस कर रहे. So no, in this case, let's say you don't want to remain that active. You booked it at 225 is the price, 240 you sell the call at a 10 rupees premium, and you don't look at it. Yeah, At a month and you look at it, then you will still get 10, no? yeah, you will get 10 if the price remain below 240. If the if the price price remain, remain, below if the price of 240. HPC will remain below 240, you will get your full 10 rupees because your call will become worthless. It will become zero value. Yeah. If it goes above 240, then whatever the price goes up, that will be your You loss got in to- the call. So if Yes. your price has become more than And you got to 250, sell the share. then you have to give the delivery. So you are making a profit in the delivery. That is the reason in covered call, you are making profit in both the scenario. If the price fall, you are making the money. If the price goes up, you are making the money. मतलब ये स्ट्रेटेजी का तो कोई मुकाबला है ही नहीं है. शेयर गिरे तो पैसा कमाओ, शेयर ऊपर जाए तो पैसा कमाओ. आप ऐसा आप बताइए और कौन सा स्ट्रेटेजी है आज की तारीख में? मतलब ऐसा कोई स्ट्रेटेजी अवेलेबल नहीं है. कोई भी शेयर ले लो आप, कॉल से नीचे गिरेगा तो पैसा रेंटल आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो डिलीवरी दे देंगे तो उसपे पैसा आ जाएगा. दोनों में पैसा कमाओगे आप. पर कुठारी जी, अगर हम एक कॉल को सेल करते हैं तो हमें उसका मार्जिन ज्यादा देना पड़ेगा ना. एक तो हमने शेयर्स ऑलरेडी खरीदे हुए हैं, उसमें पैसा इन्वेस्टेड है, और अब हम एक कॉल माइनस कर रहे हैं यानी सेल कर रहे हैं विदाउट बाइंग, तो उसका मार्जिन काफी देना पड़ता है ना सर. मार्जिन उसका 1/3 देना पड़ता है, बट आप जो है इक्विटी को प्लेस करके आप मार्जिन ले सकते हो. आप एक तो वो अच्छा. पॉसिबिलिटी है, नहीं तो आपको 1/3 आपको मार्जिन डालना पड़ेगा. वो सब मैंने सिनेरियोज नहीं डाले हैं. ओके, मतलब दो ज्यादा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि आपको मार्जिन में नहीं कैसे रखना है या थोड़ा पैसा ज्यादा रखना है वहां पे, और यू कैन गिव, यू कैन प्लेस योर शेयर्स एंड यू कैन टेक द मार्जिन. ऑल दोस थिंग्स आर पॉसिबल. Okay. And just explain me again, like let's say you said it at 240 call, you said you sold and you have a premium of 10 rupees. Now let's say the prices of HPCL has moved to 230 instead of 225 now, and your premium is reduced to 5. So how do you come out of this situation and take it at 5? What do you need to do that? Okay. Now you have sold 240 call at 10 rupees, correct? Correct. 240 call you sell at the rate of 10 rupees. Now the HPCL price has increased from 225 to 230 only, but it is still below 240. Yes. Okay. So when the price remain below 240, as your month approaches to the expiry, your call prices will start falling. So what will happen with the 10 rupees call, the value of the premium will become 8 rupees, then 6 rupees, then 5 rupees. And then ultimately it will become 0 if your price remain below 240. If the price remain below 240 till the expiry of the month, which is the last Thursday of the month, if it is remain below 240, it will become 0 ultimately. But slowly it will start falling from 10 to 8 to 6 to 4 to like that it will go. So whenever you are finding you are comfortable, suppose the price has fallen to 4 rupees and you still have a say 10 days left, and you have in the mind that I don't want to give the delivery because the price goes above 240. I don't want to get into that scenario. I am happy with my 6 rupees margin. That means 6 into 2,700, I will make something around 20,000 rupees. I'm very happy with that one. So what you will do when the price has fallen from 10 to 4, you will buy back that call. Okay. आप एक्सचेंज से उसी को वापस बाई कर लोगे, आप उस कॉल को वापस बाई कर लोगे 4 रुपीस के अंदर. So you will make a profit of 6 rupees. Oh, sir, what I'm saying is you just select square off. You square off, that's all. Square off करिए, buy कर लो, बात एक ही है ना, उसको अपन square off बोलते हैं. I think many of the attenders are not understanding buying, squaring off and buying and selling. That's right. So what you have to do is whatever position you have taken, okay, it will be showing you that the value is changing from 10 to 5 to 6 to 8 to 7 to as. So that time when you're happy with say 5 rupees or 4 rupees, you click that. It will ask you, do you want to square off? Yes, square off. It will buy. It will buy back, and you'll get your profits. Means you have to exit from your trades. Right. Correct. You exit. Right. So And that means exit will be at 10 rupees you enter into the trade, and at 6 rupees say you will exit the trade. Then you will be getting a 4 rupees. Right, 100% right.
So it is something like you have sold something for 10 rupees and you are buying it for 4 rupees. So 6 rupees आपका profit हो रहा है उसमें. It is simple as that. आपने किसी चीज को 10 रुपए में बेचा है, 4 रुपए में खरीद रहे हो वापस, है ना? तो 6 रुपए का आपको उसमें प्रॉफिट हो गया है. Because see, suppose you have 50% of the lot, and you said you start selling the call, okay, and the strike price goes up, and you don't have cash. Then what is the suggestion? देखो शेखर, उसमें क्या है कि if you have a 50% of the lot, if the price is falling, then there is no problem. Correct? Yeah. If the price is falling, your call premium is falling, absolutely you can control. Okay. Now the issue becomes the price start increasing it. Okay. Now if the price start increasing, then you have to buy the balance quantity. But then still you have to buy profit in your the balance 50% quantity. Na? By 50% quantity, you have taken only the 50% of your capital. So you are entitled for 50% of the profit only. Now, if the price started moving up, then you have to buy the balance quantity before it come to your strike price. Achha. Before it comes to your strike, right? Yeah. That you have to buy before that one. Okay. No, the problem is that if you don't have, the problem is if you don't have cash, if you don't have the capital, then don't do it. Don't do it. Capital नहीं है तो हाथ ही नहीं लगाना इसको. That is the reason those are slightly risky strategies. I have not discussed all those things. I just explained. I just gave a reference. Otherwise, ideally, you should have the full lot with you. Then only you should do it. मैं बता रहा हूँ ना यार. So for the covered call, पूरा जो lot size, पूरा जो आपका portfolio है ना, उसको restructure करके just focus on the 4 or 5 script, or focus on the 2 or 3 script, and just sell the call every month. You will make a lot of money. कुछ नहीं करना, और जिस दिन आपका वो डिलीवरी देना पड़ गया उस दिन से आप कैश सिक्योर्ड पुट करना चालू कर देना. दैट्स ऑल. अभी मैं आपको नेक्स्ट वाले में बताऊंगा कैश सिक्योर्ड पुट कैसे करते हैं, बट वो थोड़ा सा जो है मतलब जैसे पता है ना, पुट सेलिंग थोड़ा रिस्की होता है. तो प्रॉब्लम क्या होता है कि पब्लिक स्टार्ट सेलिंग द पुट इमीडिएटली, और उसमें हम फंस जा रहे हैं हम लोग. दैट इज द रीजन आई हैव नॉट टेकन द पुट सेलिंग का. आज मैंने स्लाइड नहीं लिया. मैंने आई वांटेड फर्स्ट टू फोकस ऑन द कवर्ड कॉल, व्हिच इज अ यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी अक्रॉस द वर्ल्ड. Every country, every senior citizen, every retired person is using the covered call strategy. And in India, I don't know why we are so scared. India में very few use this strategy. But अभी जैसे अपने थोरट साहब ने बताया था, for last 1 year he is using and that he is making 15,000 every month on an investment of say around 4 lakh rupees. और क्या चाहिए यार, उनका रिटर्न तो 5% हर महीने का आ रहा है. तो he is much better than Warren Buffett. That is what I will say. For the covered call, then I need not to switch from ICICI Direct as well. Then I can do there itself. हाँ, उसमें भी वहां से पता तो एक ही ट्रेड करना है, तो एक ही ट्रेड में वो कितना 50 रुपए ले रहे, कितना लेते हैं ब्रोकरेज वो? नहीं, अभी तो वो कम भी करते जा रहे हैं, 25 या कुछ और भी कम के हैं. You can continue there also. एक ही तो ट्रेड करना है महीने का, क्या फर्क पड़ने वाला है? So it is a less of hassles and looks me pretty a safe game. Yeah, and then you'll always feel more secured with ICCI. There is no doubt about it. Absolutely. You can continue there. Switching portfolio is what I was जो रेगुलर ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए फिनविशिया बहुत अच्छा है, उनके लिए जीरोधा ठीक है. बट जो रेयरली महीने में 1 या 2 ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए तो ICCI डायरेक्ट भी ठीक है. There is no issue. There is no problem. Means covered call you do here and algo I can use for buying when the market keeps on falling. Yeah. That is what I explained. Make a portfolio today. other side. Yeah, that is what I explained today. कि slowly you make your portfolio. अभी मेरे 2 अकाउंट हैं, एक मेरा अकाउंट है, एक मेरा वाइफ का अकाउंट है. तो मेरी वाइफ के अकाउंट के अंदर मैंने एल्गो इन्वेस्टर्स ला रखा है. वहां मैंने क्या रखा है कि जो टॉप 10 शेयर हैं उसके मैं 2 शेयर खरीदता हूँ फॉर एवरी 10 रुपीज और 15-25 रुपीज फॉल पे. बस उसमें ये एल्गो चला के छोड़ा हुआ है मैंने, और मेरा एक मैंने ट्रेडिंग कैपिटल डाला हुआ है. वो धीरे करके मेरा पोर्टफोलियो बनता जा रहा है, जो कि मेरा लार्ज कैप का हो जाएगा. और जो मेरा अपना वाला है वो उसमें मैं अपना ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं. अच्छा कोठारी जी, एक डाउट है मेरा, जो शायद बहुत लोगों को डाउट होगा. बाला बोल रहा हूँ. डाउट ये है कि जैसे आप आईटीएम में पहुंच जाते हैं, चाहे वो पुट हो चाहे कॉल हो, उसमें फिनवेशिया वो ऑटोमेटिकली कर देता है या फिर आपको मैनुअली करना पड़ता है? नहीं, वो सब ऑटोमेटिकली करते हैं, तो मैंडेट है ना तो सेबी का. मतलब यदि मेरे पास ऑलरेडी लॉट है और मैं कॉल में मैंने सेल किया हुआ है, तो जब यदि वो आईटीएम जाता है, मैं कुछ नहीं करूं, अपने आप ही वो सेटल हो जाएगा. आपके अकाउंट से वो डिलीवरी चला जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली चला जाएगा, मुझे कुछ करना नहीं. डिलीवरी चला जाएगा. वो जीरोधा वाले केस में 0.25% ब्रोकरेज लेंगे, आपको फिनविशिया वाले केस में वो एक्स्ट्रा ब्रोकरेज नहीं लेते.
और दूसरी चीज, if the same thing happens in put, if I तो मुझे खाली पुट में के मुझे उतना पैसा रखना पड़ेगा, आई हैव टू कीप दैट मच मनी, आपको डिलीवरी आ जाएगा और ऑटोमेटिकली डिलीवरी। या बट मेरा सजेशन ये है कि डोंट वेट टिल द एक्सपायरी, उसके 1-2 दिन पहले खुद करके निकल जाओ, दैट इज ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपको पता है कि क्या रेट पे आप निकल रहे हो, क्या रेट पे घुस रहे हो आप। जब आप एक्सचेंज के भरोसे छोड़ दोगे ना, तो वो एक्सचेंज का पता नहीं है कि लास्ट के 15 मिनट में क्या करते हैं। हिंडाल्को का सबको पता है, हिंडाल्को में जो एक जो उसको ट्रेडर को कोई 40-50 लाख का लॉस हुआ था, वो क्या है कि लास्ट के हाफ एन आवर के अंदर वो ये जो ऑपरेटर लोग रेट को कहीं का कहीं ले जाते हैं आप लोग, उसमें थोड़ा फंस सकते हैं। तो मेरा सजेशन तो ये है कि आप 1 दिन पहले अपना मैनुअली खुद ही एग्जिट कर जाओ, तो कम से कम आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो। दैट इज माय एडवाइस। आई विल नॉट, आई नॉर्मली आई नेवर वेट टिल एक्सपायरी। इवन में तो अगर ओटीएम भी है और ओटीएम में अगर 5 पैसे पे एक्सपायर हो रहा है, जैसे लास्ट में वैल्यू 0 नहीं होकर 5 पैसा चलता रहता है, मैं 5 पैसे पे उसको एग्जिट कर जाता हूँ। मैं थोड़ा छोड़ दो पैसा यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, 5-10 पैसा छोड़ देंगे। हाँ, मैं तो छोड़ देता हूँ उसको। I fully agree. हाँ, मैं उसको जीरो होने तक वेट नहीं करता मैं। What is ICICI direct algo cloud you have started installing? नहीं, अभी नहीं चालू किया, वो अभी नहीं हुआ, क्योंकि हार्डली उसमें 8-9 लोगों का रिक्वायरमेंट आया था, तो 8-9 लोगों के लिए फिर वो राकेश जी बोलते हैं मैं देखता हूँ, मैं कर रहा हूँ। मैं he said कि they will do it, but अभी उन्होंने किया नहीं है। सर ये REC का जो है, अगर हम उसमें भी कर सकते हैं, तो REC is also very fluctuating or it is a stable kind of REC अभी तो स्टेबल है, बट वो कहां से कहां गिर गया, प्रॉब्लम ये है उसके अंदर। तो वो कभी भी बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी बिल्कुल लोएस्ट बॉटम पे चल रहा है। अभी तो आपका उसमें डिविडेंड रिटर्न 8% का रेट, आपका डिविडेंड रिटर्न हो जा रहा है उसके अंदर। आज की तारीख में आप REC या PFC खरीद लो आप, तो आपका डिविडेंड रिटर्न विल बी अराउंड 8 to 10% यार। और क्या चाहिए आपको? तो सर मेरे पास 7,000 ऑलरेडी REC है, बिकॉज आई वाज इन REC, सो आई गॉट एम्प्लॉय कोड। वो अगर मैं उसी के अलॉट बना करके अगर कवर्ड कॉल करते रहे, वो ज्यादा बेटर है। कवर्ड कॉल आप इसमें करो ना, तो कम से कम 20% ऊपर का रेट का करना, क्योंकि कभी भी मूव आएगा ना, तो कम से कम 15-20% का मूव 1 महीने में आ जाएगा उसके अंदर। ओके, तो इट मींस जैसे 100 या 105 का रेट चल रहा है, हाँ, तो आप 125 का कॉल बेचो आप, तो कम से कम आपको 1 रुपया मिलेगा। ठीक है, 1 रुपया भी मिलेगा तो 1 रुपया भी 6,000 रुपए आ गए ना। क्या चाहिए आपको यार, कम से कम आपको डिविडेंड आ रहा है हर महीने ना। हाँ, तो आप ऐसा 20% ज्यादा का बेचना REC और PFC के अंदर, क्योंकि जब भी मूव आएगा 20-25% का मूव आएगा उसके अंदर। नहीं तो वो आपका जो मूव करीबन आधा 1% का चलता है एवरी डे, बट वन डे इट विल कम, बट व्हेन इट विल कम नोबडी नोस। तो अगर वो आएगा तो हमारा कॉल रेट अगर हमने खरीद के रखा है, ऐसा और सेल किया है इसमें, तो हमें हाँ, तो तो सेल डिलीवरी करना देना है। पड़ेगा ना फिर आपको। ओके। हाँ, फिर आपको 120 में डिलीवरी देना पड़ेगा ना। फिर ऐसा जब जैसे आपने 100 रुपए का आपका एक्विजिशन कॉस्ट है और 120 में डिलीवरी दे रहे हो, तो यू आर हैप्पी कि 20% का मुझे रिटर्न आ गया। लेकिन आपका एक्विजिशन कॉस्ट अगर 150 का है मान लो, और 120 पे डिलीवरी देना पड़ेगा, तो आपका 120 पे डिलीवरी हाथ से छूट जाएगा ना। ठीक, तो दैट इज द रीजन आप थोड़ा ज्यादा रखो, तो कम से कम उसका वो ITM होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है सर, ठीक है, वो हिसाब से। ओके, एनी अदर क्यूरी? महाजन जी, आपको समझ में आया सारा फंडा? महाजन जी, महाजन जी नहीं सुन रहे। अच्छा सर, मैं रंजीत बोल रहा हूँ। सर, ये डिलीवरी देना जो है, ये मुझे थोड़ा सा आप एक बार और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उसमें इतना बड़ा मतलब क्यों हम लोग उसको पॉइंट आउट करें कि डिलीवरी देना पड़ेगा। तो अगर मैं देता हूँ डिलीवरी, तो मतलब किस तरह से मुझे, जैसे आपने एकोमोडेशन प्राइस बताया, तो किस तरह से मेरे को डिलीवरी को बचाए रखना है, मतलब उसका प्रेफरेंस हम लोग क्यों लेके चलते हैं कि हमें डिलीवरी बचा के रखना है और हम लोग उससे हायर बेचें? ओके, थोड़ा सा सर एग्जांपल के साथ मुझे बताएंगे तो शायद मुझे समझ आ जाएगा। अभी अपने को क्या है कि जैसे अपने को अपने बच्चों से बहुत प्यार होता है ना, अपने बच्चों से बहुत प्यार हो जाता है अपने को ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, तो सिमिलरली इन्वेस्टर्स को अपने शेयर से बहुत प्यार हो जाता है। हाँ वो सर, वो आपका दे टेक अ attachment हो प्राइड जाता कि है। मैं ITC पिछले 25 साल से रखा हुआ हूँ, मैं रिलायंस पिछले 20 साल से रखा हुआ हूँ, बराबर है? ठीक है सर, ठीक है ना। तो अभी क्या है कि उन लोगों का एक माइंडसेट ये होता है कि मुझे रेंटल इनकम भी आता रहे, लेकिन मेरा डिलीवरी नहीं जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। डिलीवरी नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। सर। तो सर, अभी अगर उन्होंने डिलीवरी क्या चले किया कि जाता वो है, लालच में वो अपना रेंटल इनकम के लिए वो अपना OTM कॉल बेचते जा रहे हैं, जो कि पास वाला है। जैसे कि जैसे रिलायंस का एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। अब रिलायंस का अभी मान लो 2500 का रेट चल रहा है और वो 2600 का कॉल बेच रहे हैं हर महीने।
और हर महीने उनको 20-20, 25-25 रुपए का रेंटल इनकम आता जा रहा है। लेकिन कभी ना कभी तो आपका ऐसा होगा कि जब वो रिलायंस 200 रुपए से ज्यादा बढ़ जाएगा एक महीने के अंदर। करेक्ट सर। तो उस वाले केस में या तो आपको डिलीवरी देना पड़ेगा, नहीं तो लॉस बुक करना पड़ेगा। अब वो आदमी डिलीवरी नहीं देना चाहता है, क्योंकि वो तो ये बोलता है यार रिलायंस तो मैं पिछले 20 साल से रखा हुआ, मैं रिलायंस को 2700 में कैसे डिलीवरी दे दूं, रिलायंस को 2800 का शेयर हो गया, मुझे तो डिलीवरी नहीं देना है, तो फिर आपको लॉस बुक करना पड़ेगा कॉल के अंदर। सो उसको अपन बोलते हैं कि मेरे को डिलीवरी देना पड़ गया। लेकिन अगर आपको रिलायंस से मोहब्बत नहीं है, भाई मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलायंस का मैंने डिलीवरी 2700 आ गया, मेरा टारगेट पूरा हो गया, मैं डिलीवरी देने को तैयार बैठा हुआ हूँ। क्योंकि उसमें एडवांटेज क्या है कि अगर आपने 2700 पे डिलीवरी दे दिया तो आप 2600 या 2500 का पुट फिर से बेच सकते हो आप आराम से आप। तो आपको पुट वाले साइड से आपको रेंटल इनकम चालू हो जाएगा। बस बहुत डिसिप्लिन का जरूरत होता है उसके अंदर। जैसे मैंने लास्ट वाला साइड में दिखाया था ना कि अगर आपने शेयर बेचने के अगेंस्ट में अगर पुट बेचा है तो ये बहुत बढ़िया चीज है, बहुत बढ़िया चीज है। तब आपको हर महीने रेंटल इनकम आता रहेगा, नहीं तो आपको शेयर का डिलीवरी वापस आपका 2500 पे वापस आ जाएगा। ठीक है। फिर से आपको बताता हूँ, अभी आपने रिलायंस का जो 2500 का शेयर था वो 2700 पे आपने कवर्ड कॉल करके आपको डिलीवरी दे दिया, बराबर हो गया? ये आपको समझ में आ गया? ठीक है। अभी 2700 पे देने पर आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। 200 इंटू 250 का लॉट है, 50,000 को फायदा हो गया आपको, बराबर है? अभी आपको 2700 का आने के बाद में आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। तो अभी आप पुट आराम से बेच सकते हो। आपने क्या किया, 2500 का पुट बेचना चालू कर दिया। तो 2500 का पुट बेच रहे हो तो आपको 10-10 रुपए का किराया आना चालू हो गया हर महीना। ठीक है। और जिस दिन भी वो शेयर 2500 गिर जाएगा तो आप डिलीवरी वापस ले लोगे, क्योंकि आपके पास तो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है ना? तो वो साइकिल चलता रहेगा। तो वो आपका साइकिल चलता रहेगा। अभी प्रॉब्लम क्या होता है कि लोग जो है ना वो कॉल भी बेच रहे हैं, पुट भी बेच रहे हैं, दोनों एक साथ बेच रहे हैं। तो उनको डबल रेंटल इनकम का फायदा होता है। उनको रेंटल इनकम डबल आ रहा है, मैंने पुट का भी रेंटल इनकम आ रहा है और कॉल का भी रेंटल इनकम आ रहा है। ठीक है। लेकिन उसमें अगर वो 2500 से अगर शेयर नीचे गिर गया तो उनको एक लॉट और खरीदना पड़ेगा। हाँ। और वहां आदमी फंस जाता है, ठीक है ना? तो ये जो दो स्लाइड है जो आपका स्ट्रैंगल इसको बोलते हैं हम, शॉर्ट स्ट्रैंगल, कवर्ड शॉर्ट स्ट्रैंगल और कवर्ड कैश इक्विटी पुट, ये मैं अगले वाले सेमिनार में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं। बट मोटा मोटा लॉजिक वही चलता है कि डिलीवरी देना पड़ गया या डिलीवरी लेना पड़ गया का मतलब ये है कि पुट अगर आपका आईटीएम हो गया तो आपको डिलीवरी लेना पड़ेगा, नहीं तो लॉस बुक करना पड़ेगा। और कवर्ड कॉल में आपको डिलीवरी देना पड़ेगा या लॉस बुक करना पड़ेगा। तो इफ यू आर हैप्पी इन गिविंग द डिलीवरी देन देयर इज नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली नो इशू। अंडरस्टूड सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बट बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है ये कवर्ड कॉल का, आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छा पैसा बनाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। और कभी भी टेंशन नहीं होगा, ट्रेड विल बी वेरी वेरी लेस, हार्डली 2 या 3 ट्रेड महीने के होंगे, आराम से पैसा कमाओगे, शांति से आएगा, 2-3% का रिटर्न आएगा। You should be very happy कि that you are competing with Warren Buffett. That is what I'll say. So जो लोग 10% का टारगेट लेते हैं ना, एक सुनिए, जो लोग 10% महीने का टारगेट लेते हैं वो 10% लूज भी करते हैं, और लूज ज्यादा करते हैं बनाने के बजाय, क्योंकि ऑपरेटर्स बड़े बड़े शार्क बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर, ऑल आर बड़े बड़े मगरमच्छ हैं ये लोग। हम लोग तो बहुत छोटी छोटी जो है ना मछलियां हैं, हमको इनसे बचना है। तो कवर्ड कॉल में ये अपना कुछ नहीं कर सकते, ये गारंटी है मेरी, वरना कुछ भी काम और करोगे उसमें फंसोगे ही फंसोगे, कहीं ना कहीं जाके फंसोगे आप। That is what I'll say. Yeah, बोलिए। So one thing we talked about the covered call sell and put sell. How about the covered call buy and put buy? वो तो गैम्बलिंग हो गया जो अपन ने बताया था ना, दैट्स अ गैम्बलिंग। उसके अंदर या तो आपका वैल्यू 0 होगा या आपको 3 गुना 4 गुना प्रॉफिट आएगा। लेकिन हिस्टोरिकली स्टैटिस्टिकली अगर हम देखें तो 80% ऑफ द टाइम योर कॉल बिकम 0। अब कभी भी आप इंटरनेट में जाके सर्च कर लेना कॉल बाइंग वर्सेस कॉल सेलिंग, तो 80% ऑफ द टाइम कॉल बिकम 0। दैट मींस कि देयर इज 80% प्रोबेबिलिटी ऑफ योर कॉल, जो प्रीमियम होता है वो आपका 0 हो जाएगा। आपके जितने भी FIIs हैं, जितने भी DIs हैं, वारेन बफेट है, दे ऑल सेल द कॉल, दे ऑल सेल द ऑप्शंस, दे नेवर बाय द ऑप्शंस। ऑप्शंस इनवेरिएबली बाय करते हैं सारे रिटेल इन्वेस्टर, जो जुआरी लोग हैं, जो गैम्बलर्स हैं, क्योंकि उनको पता है या तो 0 हो जाएगा या मुझे 10 गुना मिलेगा। तो इफ यू आर हैप्पी विद दैट वन यू कैन डू इट, बट द प्रोबेबिलिटी इज कि आपको 10 में से एक बार आपको जो है वो मिलेगा, आपको 10 में से एक बार प्रॉफिट मिलेगा, 9 बार आपको लॉस होगा, आप थक जाओगे इसके अंदर।
मतलब कि आपको हर महीने आप देख रहे हो आपको लॉस होता जा रहा है, थक जाओगे, अरे यार ये तो ये कॉल खरीद खरीद के मैं तो मतलब वो हो गया। और या फिर आपको आईटीएम का एटीएम का कॉल बेचोगे विच विल बी वेरी हाईली प्राइस्ड। व्हाट इज आईटीएम एंड ओटीएम? आईटीएम एंड ओटीएम? आईटीएम होता है इन द मनी और ओटीएम होता है आउट ऑफ द मनी। ये सब में एक्चुअली मेरा वो बेसिक्स में कवर करता हूं मैं, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट